Good morning to all of you. Morning, sir. Am I audible? Right. So in last class, we have discussed all the basic concepts about the Maratha Empire, right? Now we are familiar that how Maratha state was carved, okay? Who founded Maratha Empire, the history of the Maratha rulers, and how the age of Peshwa dominion started during the Maratha Empire. We have discussed all these concepts. Now, the second part in this chapter is very much important in this entire segment, that is India in 18th century. The second part in this chapter is Anglo-Maratha Wars. This we need to discuss. That is Anglo-Maratha Wars. Okay. Anglo-Maratha Wars. We need to discuss this topic. Mark this topic as one of the most important topic. Most important topic, right? Three Anglo-Maratha Wars were fought. First, we need to know this. Three Anglo-Maratha Wars were fought. Now, there are two perspectives of studying this topic. There are two perspectives. For example, many of you are reading a spectrum also. Okay, so that spectrum is helpful for optional also, for factual portion especially, right? But here I am covering segregating these two things, that if you don't have history optional, so you don't have to make much effort in gathering, okay, unnecessary information. For example, here there are two perspectives. First, GS perspective, and the second is optional perspective. There are two perspectives here, right? In optional perspective, we need to discuss analysis, plus we need to discuss all important treaties and the provisions, okay, and the implications. This all we have to read where? In optional paper, right? It means for analysis, plus, okay, all important treaties, all important treaties, all important battles, all important battles, all important battles, and their implications, and their implications. Here you need to study various statements made by various historians, and analyzing those statements, and analyzing those statements is optional part. Clear? But for GS part, first segregate this information in your mind. For GS part, a basic understanding of these three wars, only this much is required. Basic understanding of these three wars, plus, okay, important treaties and their years. This much. Important treaties that were signed and their years, plus, okay, some underlying causes, the most important causes. This we need to understand. Clear? It means here the extension is more, here the extension is less. So I will discuss here all important information that is related to your GS paper, right? Okay, so while reading also, you are reading any book, so you must be alert. नहीं तो ये बहुत ज़्यादा extension वाला topic है. This will start creating confusion in your minds. So now we are going to discuss these three Anglo-Maratha wars. Clear? Three Anglo-Maratha wars were fought in the years I hope you must be knowing. The first was 1775 to 1782. The second was in the year 1803 to 1805, and the third was in the year 1817 to 1818. ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके पास एक एसेंस होना चाहिए कि आखिर पहला मराठा वॉर क्यों हुआ. बेसिक कॉज इतना ही जानना है, ठीक है. Important treaties, this we need to understand. These are the three important years. Now tell me, who was Governor General during this time? Governor General of Bengal कौन था 1775 to 1782? You all know this. Warren Hastings. So this is a very important information. So here Governor General was Warren Hastings. UPSC used to ask this information. That's why you must be alert here. Okay, because in exam there might be confusion while solving such kind of questions.
इन 1803 to 05 हु इज द गवर्नर जनरल, पहले भी बता चुका हूं, वो नाम आ चुका है. व्हाट इज द नेम? राइट. डू यू रिकॉल वेलेजली 1798 to 1805 सब्सिडी रिलायंस? याद आया कुछ? तो ऐसे भी तो रिलेट करना है, एग्जैक्ट भूल जाओगे इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ रिलेट करो कि वेलेजली है, यहाँ पे कौन है? लॉर्ड वेलेजली. so then write the name Lord Wellesley. Lord Wellesley was the Governor General. We all know the time period 1798 to 1805. Okay. और लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी? So he introduced subsidy alliance policy. So this is also an important part here. He introduced which policy? The answer is subsidy alliance policy. And 1817 to 18, who was the Governor General? So the answer is Lord Hastings. Lord Hastings. So read this, Lord Hastings. Lord Hastings was the Governor General, right? Lord Hastings. So this is the entire fact here, basic fact. Now I will discuss the concepts with you, that what happened, why the first Anglo-Maratha war was fought. Clear? Yes, we need to understand. Now we are entering into the topic. Only important informations we will discuss. 75 to 1770, sorry. Okay, 82. Okay, so the first war, we need to discuss why this war was fought. Okay. Now previously, while discussing the Peshwaship, I discussed some basic ideas with you. Conflict for Peshwaship in the age of Peshwaship. ये problem आ गई थी ना? So we already have discussed this part, that conflict for Peshwaship. अपने notes को देखो, open करो, and you will get this idea. Conflict for Peshwaship, right? This has started, okay, in the age of Peshwaship. And the conflict, where do we see the conflict? Okay, do you remember the case? Madhav Rao, then Narayan Rao, then Raghunath Rao. Then Raghunath Rao was deposed, and again Madhav Rao too becomes the Peshwa. यही पूरी की पूरी सीरीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, राइट? So this was the case here. One Peshwa was Madhav Rao, ठीक है? So after Madhav Rao, Narayan Rao will come. Narayan Rao will come, but get a Narayan Rao will be replaced with Raghunath Rao. We have already discussed this. Raghunath Rao, ठीक है? This Raghunath Rao was the younger son of Madhav Rao, and Raghunath Rao भी ज़्यादा समय तक पेशवा नहीं रहा. Here we see a conspiracy, that is what? Bar Bhai conspiracy against Raghunath Rao. We see a conspiracy, that is what? Bar Bhai conspiracy against Raghunath Rao. Bar Bhai is what? 12 powerful Maratha chiefs. So here we see 12 powerful Maratha chiefs conspiracy against Raghunath Rao. ठीक है? रघुनाथ राव के खिलाफ ये 12 powerful Maratha chiefs की conspiracy है. And now this Bar Bhai will install Madhav Rao too. This Bar Bhai will install Madhav Rao too. ठीक है? और ये ईयर क्या था when Raghunath Rao was the Peshwa? 1773-74. This was the year that I have already discussed with you, that this was the year when Raghunath Rao was the Peshwa. 1773 to 74. This was the year. Now what will happen? Raghunath Rao will go to East India Company to get their help and support. So this Raghunath Rao will approach East India Company, okay, to get help and support of East India Company, to get his help and support of EIC, to get his power validated. To get his power validated, he will get help and support of East India Company to get his power validated. यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट करेगा to get his power validated. This will happen. He will help and support East India Company to get his power validated. He will go. And in this way, EIC got the very first opportunity. EIC got the very first opportunity to intervene into Maratha affairs, right?
That is one of the most important point, that here AIC got the very first opportunity to intervene into the Maratha affairs. Now, Raghunath Rao will sign a treaty with East India Company. That's very important. This treaty. This can be asked in prelims, that Treaty of Surat was signed between. Okay. So in 1775, a treaty will be signed here. Important for prelims. Write this. Treaty of Surat. Treaty of Surat. Now this Treaty of Surat will be signed between Raghunath Rao and East India Company. This Treaty of Surat was signed between Raghunath Rao and East India Company. ये दोनों के बीच में treaty sign हो गई. This treaty was signed between Raghunath Rao and East India Company. Clear? Any doubt? Now, EIC क्या promise करेगी? That we will recognize you, we validate you, we will help you, we will support you to become Peshwa. ठीक है? And what Raghunath Rao will promise to give? जब भी किसी नए रूलर को लाते तो वो क्या देते? इकोनॉमिक गेन्स. इकोनॉमिक गेन्स में क्या होगा? टेरिटोरियल गेन्स, मॉनेटरी गेन्स, ऑल दिस विल बी प्रॉमिस्ड बाय रघुनाथ राव. नाउ वी आर नॉट लर्निंग दोज पॉइंट्स, वो ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है ना? इतनी बात याद रहेगी ना कि ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइंड बिटवीन रघुनाथ राव एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. बाय दिस ट्रीटी ईस्ट इंडिया गॉट अपॉर्चुनिटी to intervene into the Maratha internal affairs or the matters. ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया मराठा इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करने का. इतना पता चला. अब इसके बाद देखो प्रॉब्लम क्या है. दिस ट्रीटी वाज साइंड एंड एट द सेम टाइम इन you can say that European context there is a very important event, and that event is America's War of Independence. वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाना. कब स्टार्ट हुआ? 1775. ठीक है. And what happened? I have already told you that French were the rivals of British in India, and they were the rivals of British in Europe also. तो फ्रेंच अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या करेंगे? मैंने पहले आपको बताया, दे विल सपोर्ट अमेरिकन पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला कॉन्सेप्ट. नाउ दिस सिचुएशन इज चैलेंजिंग फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. Because in America they are tackling this situation, the people are demanding for independence, so obviously it will incur military expenses. And East India Company and the British government was very diplomatic. They never like to fight at different fronts. अलग अलग फ्रंट्स पे वो लड़ना नहीं चाहते हैं. राइट? इससे क्या हो जाता है? आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है. मेरी बात समझ गए? और आप ऑब्वियस है डिप्लोमेटिकली आपको नुकसान हो सकता है. Now what the British authority will say? British authority will say that British authority यहाँ से ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या कहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को डांट लगाएगी. क्यों ये ट्रीटी किया तुमने? Why you have signed this treaty? You are intervening into Maratha affairs, so you will have to fight with Marathas. और Marathas powerful थे कि नहीं? Yes, Marathas were powerful in India. So this is like creating double challenges for us. Here we are already in a problematic situation. तो वाई टू डू दिस? क्यों ऐसा किया तुमने? क्यों राघवा को सपोर्ट करने गए? अभी इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करोगे तो वॉर हो जाएगा. वॉर हो जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा. मेरी बात समझ गए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात समझ में आई, कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, ऊपर से अथॉरिटी परमिशन नहीं दे रही है. देन दे विल साइन अनदर ट्रीटी. ओके. एंड दैट ट्रीटी इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ पुरंदर. राइट दिस. इन 1776 हियर ईस्ट इंडिया कंपनी विल साइन अनदर ट्रीटी, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ पुरंदर. केवल इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है. मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि आपको इंफॉर्मेशन याद रह जाएंगे. ट्रीटी ऑफ पुरंदर. अब ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच में साइन होगा? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऊपर से ऑर्डर मिला है क्या कि राघवा को हेल्प और सपोर्ट देना बंद करो, इससे प्रॉब्लम बिगड़ जाएगी, हमें इंडिया में भी फाइट करना पड़ सकता है वॉर. इस ट्रीटी से क्या किया जाएगा? जो प्रीवियस ट्रीटी है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई ठीक है, हमने कोई रघुवा होगा ओके हेल्प नहीं करनी है. ये ट्रीटी किसके साथ साइन होगी? पूना कोर्ट के साथ, जो करंट पेशवा है उसके साथ, कि पेशवा भाई नाराज मत हो, गलती हो गई हमसे, पहले हमने रघुवा को सपोर्ट किया था, अब हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये ट्रीटी साइन हुई है. मेरी बात समझ गया ना? तो दिस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन होम? राइट दिस. बिटवीन पूना कोर्ट. अब यहां से आप समझ जाओगे
पूना कोर्ट इट मीन्स आई एम सेइंग पेशवा, पेशवा जो करंट पेशवा था उसकी बात कर रहा है। दिस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन पूना कोर्ट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पूना कोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ट्रीटी साइन हो गई। आसान है ना। पर्पस क्या है इस ट्रीटी का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्रीटी? पर्पस क्या है? ओके, टू अवॉइड, हाँ एग्जैक्टली हाँ, तो इसका एसेंस क्या है? टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन, टू अवॉइड conflict like situation with Marathas, avoid conflict like situation with Marathas, to avoid conflict like situation with Marathas, because British were involved in American War of Independence. Because British were involved in American War of Independence 1775. So they don't like to open multiple war fronts. They don't like to open multiple war fronts. ठीक है, स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि फैक्ट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, राइट? दे डोंट लाइक टू क्रिएट मल्टीपल वॉर फ्रंट्स। so the basic purpose is to declare treaty of Surat null and void. The basic purpose is to declare treaty of Surat null and void. ट्रीटी ऑफ सूरत को क्या कर देना है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर दूसरी ट्रीटी पहले वाली ट्रीटी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी। ठीक है, बट व्हाट इज द कंक्लूजन पार्ट हियर? फिर वॉर इतना लंबा चला क्यों? राइट कंक्लूजन दैट दिस ट्रीटी कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू सम events. This treaty could not be implemented due to some events. This treaty could not be, okay, implemented due to some events. अब ये ट्रीटी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। मेरी बात समझ गया? और इसमें क्या किया था? ईआईसी ने राघोवा को सपोर्ट किया था। जो माधवराव टू रूलर था उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? 12 पावरफुल मराठा चीफ बार भाई, जिसमें महाजी सिंधी जैसे पावरफुल मराठा वॉरियर थे। अब उनको गुस्सा तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे था ही, ठीक है। तो एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर्स मराठास के चंगुल में फंस जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? मराठास क्या करेंगे पता ही है आपको, ठीक है। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऐसे बढ़ने लगा मराठाओं ने, है ना। बहुत वो इंटरेस्टिंग कहानी है, सो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स दिखते थे, ठीक है, मराठा उनको धोना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से फंस गई, ठीक है। बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी मराठास के पास पीस ट्रीटी का प्रपोजल लेके जाती थी, और ये पीस ट्रीटी हमेशा ह्यूमिलेटिंग होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कई सारी छोटी छोटी ऐसी ट्रीटीज भी साइन हुए, आई एम नॉट डिस्कसिंग दो स्मॉल ट्रीटीज। एंड लास्टली व्हाट विल हैपन इन 1782, राइट दिस, in 1782 a treaty was signed, and that treaty is called Treaty of Salbai. Read this, that treaty is called Treaty of Salbai, that was signed in 1782. इस ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ सालबई, ओके, इन 1782, एंड इट एंडेड द एंग्लो मराठा वॉर। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है इसमें, उतना जरूरी नहीं है। सो राइट दिस, ट्रीटी ऑफ सालबई ended the first Anglo-Maratha War. It ended the first Anglo-Maratha War. And write one more point, that it also promised for the it also promised for the restitution of each other's territories। मतलब एक दूसरे की जो टेरिटरी हमने कंट्रोल कर ली है, कब्जा कर लिया, वो वापस कर देंगे, राइट। सो इट ऑल्सो promised about the restitution of each other's territories. It also promised about the restitution of each other's territories and status quo. Restitution of each other's territories and status quo, ठीक है। एक दूसरे की टेरिटरी वापस कर देंगे, जो जैसा है वैसा बना रहेगा, राइट। बोथ राइट दिस, बोथ द पावर्स विल नॉट क्रिएट ट्रबल्स फॉर ईच अदर इन फ्यूचर। दोनों एक दूसरे को इन फ्यूचर परेशान नहीं करेंगे। बोथ द पावर्स विल नॉट क्रिएट ट्रबल्स फॉर ईच अदर इन फ्यूचर। बोथ द पावर्स
will not create troubles for each other in future. अब आपसे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं. दिस स्टेटमेंट कैन बी अ प्रीलिम्स स्टेटमेंट क्वेश्चन. इफ आई से दैट ट्रीटी ऑफ सूरत started first Anglo-Maratha War and Treaty of Salbai ended this war. Correct or incorrect? Correct. प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होगा, इंफॉर्मेशंस को रिप्लेस कर देंगे. दे विल राइट लाइक दिस: ट्रीटी ऑफ सालबाई स्टार्टेड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सूरत एंडेड दिस. करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट. मेरी बात समझ गया ना? तो यूपीएससी विल आस्क ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. मेरी बात समझ गया? तो वहीं पे फोकस रखना है. अब जैसे मान लो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, if it is asked to match, if they will write correctly matched format question, four treaties on one side and it was signed between which powers on other side. Okay, so for that format we need to know treaty of purandar also, but treaty of surat is more important. So you can write this point, write this, that treaty of surat, treaty of surat, और highlight कर लेना इस line को. treaty of surat, okay, started first Anglo-Maratha war. treaty of surat started first Anglo-Maratha War and Treaty of Salbai ended this war. Treaty of Surat नीचे लिख लेना 1775 and Treaty of Salbai 1782. Treaty of Salbai ended this war. Treaty of Surat started first Anglo-Maratha War. Treaty of Salbai ended this war. देखो हम क्लास बहुत पेशेंस के साथ करेंगे. मैं रेगुलर क्लास में जितनी चीज़ें पढ़ाता हूँ बिकॉज देयर इज़ द लिमिटेशन ऑफ क्लासेस हियर. ठीक है, तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैरेलल में जीएस के दूसरे मॉड्यूल पढ़ते रहो, राइट, और हिस्ट्री की तैयारी मेरे ऊपर छोड़ दो, राइट. ओके, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं करना होगा. तो पैरेलली यू फोकस ऑन अदर एरियाज, राइट, एंड लीव हिस्ट्री. दैट वी विल डिस्कस, यू विल डिस्कस विथ मी. ठीक है, क्लासेस प्लस PYQs प्लस करंट अफेयर्स ऑल्सो. ठीक है, गॉट इट? ओके, नाउ this topic is clear. Now the next war, next Anglo-Maratha war starts in which year? Next Anglo-Maratha war का year बताओ. It is 1803 to 1805. यही है ना? This is the second Anglo-Maratha war. This is the second Anglo-Maratha war. अब एक फैक्ट रिलेट करो. रिलेट करोगे तो फैक्ट आपको आसानी से याद होगा. फर्स्ट वॉर एंडेड इन विच ईयर? 1782. पहले का टाइम यही था ना, 1775 टू 1782. फर्स्ट वॉर एंडेड इन 1782 एंड सेकेंड वॉर स्टार्टेड इन 1803. तो यहाँ गैप कितना है? व्हाट इज द गैप हियर? गैप कितना है बताइए? गैप ऑफ ऑलमोस्ट 20 years. 1782, 92, 1802. So this is a gap of almost 20 years. Gap of almost 20 years. Gap of almost 20 years. अब एक और फैक्ट को रिलेट करो. These all facts are the string of facts. In 1761 what had happened? Third battle of पानीपत. फिर से रिलेट करो. 1761 में क्या हुआ था? Third battle of पानीपत. And this third battle of पानीपत was fought between Marathas and Ahmad Shah Abdali. और इस बैटल में क्या हुआ था? मराठा पावर was crushed badly. Some historians write completely. ठीक है, मराठा कमजोर हो चुके थे. अब आप समझो कि वो कमजोर होने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो फर्स्ट वॉर है, दिस इज अ व्हाट, विच वॉर? प्रोलॉन्ग्ड वॉर. लंबे समय तक चलने वाला वॉर है. और इसके बाद गैप कितने टाइम का है? 20 years का टाइम है. व्हाट डज इट शो? मराठाज वर पावरफुल और नॉट? पावरफुल थे कि नहीं? ओके, इसीलिए मैंने कहा कि जो डिक्लाइनिंग मुगल पावर है, इस फेज में जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के सबसे पावरफुल कंटेंडर्स कौन थे? मराठास थे. ठीक है, यहाँ वीक होने के बावजूद भी यहाँ पे ये वॉर क्या है? प्रोलॉन्ग्ड वॉर है. इसके बाद गैप कितना है? गैप ऑफ ऑलमोस्ट 20 years. इट शोज दैट मराठास वेयर पावरफुल एनफ. स्टिल दे वेयर पावरफुल एनफ. स्टिल दे वेयर पावरफुल एनफ. और एक और फैक्ट रिलेट करो. When the first Anglo-Maratha War started 1775, before this British has already conquered Bengal. They have defeated Awadh.
Do you remember? They have also defeated the Mughal emperor. From 1765 onwards, याद है आपको 65 से 1772 तक क्या है? Dual system of governance in Bengal. So they are also controlling rich revenues of Bengal region. उनके पास बंगाल है, अवध है, बंगाल से आने वाला रिच रेवेन्यू भी है. इसके बावजूद भी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का कॉन्टिन्यूएंस कितना है? 7 years. It was a prolonged war. Then there was a gap of almost 20 years. This shows that Marathas were powerful. Maratha powerful थे. अब समझ में आया? फैक्ट याद रहेगा आपको? So that's why we need to learn the fact in this way. Now 1761 is clear, Anglo-Maratha War is clear, treaty is clear. Now we are entering into this second Anglo-Maratha War. What happened? Okay, have you written this? तो फैक्ट्स को हमेशा रिलेट करके याद रखना है, समझ गए? इंडिविजुअल फैक्ट्स की तरह नहीं, कुछ भी हो कुछ ना कुछ उसमें अपना दिमाग लगाओ. ठीक है, चलिए. Now we are moving ahead. This is second Anglo-Maratha War. Now I'm asking you a simple question that who was the Governor General here? Governor General कौन है बताइए? सेकेंड में who is the Governor General? Lord Wellesley. यही है ना? Lord Wellesley. And Lord Wellesley introduced which policy? So the answer is subsidiary alliance policy, right? Lord Wellesley was in India from 1798 to 1805 और सब्सिडी अलायंस पॉलिसी ये कब लेके आया था? 1798 में. ओके, what this policy intends for? Was it intended to establish indirect control and influence on the local states? Yes or no? Yes. देखो, डायरेक्ट एनेक्स नहीं करना है लोकल स्टेट्स को, क्या करना है? उनके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करना है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. So this subsidiary alliance policy, okay, what was the core objective of this policy? So the core objective of this policy was to establish, write this, to establish indirect control and influence, to establish indirect control and influence. This word is very important, indirect, to establish indirect control and influence on the local states or the regional state, on the local states or the regional state, local state. Okay, was it a part of policy of expansion of the British government in India? Yes, this is how they were doing what? Expansion of British Empire. ठीक है, वो बहुत डिप्लोमेटिक वे में कर रहे थे. So this policy was introduced for which purpose? So this policy was introduced for expansion of British rule in India. This was the core objective of this policy. Expansion of British rule in India. Okay, for this reason this policy was introduced, expansion. और expansion में यहाँ पे क्या है? Indirect control and influence. This policy was introduced for this purpose, to establish indirect control and influence. Is it clear? Now, how this influence will be established? So British were very diplomatic. We all know this, that East India Company was very diplomatic. Now what EIC will promise? EIC will promise the local state or the native state that the native state will be the protectorate state of EIC. Protectorate state of EIC. It means EIC will protect the native state. EIC क्या करेगी? EIC will protect the native state. ठीक है, and that is good. How EIC will protect the native state? So with its okay, trained military. ठीक है, so this military, trained military will protect the native states. नेटिव स्टेट को किससे प्रोटेक्ट करेगा? फ्रॉम इट्स नेबर्स एंड एनिमीज, इसके दुश्मनों से, इसके पड़ोसियों से. फ्रॉम इट्स नेबर एंड enemies, from its neighbor and enemies. It will protect the native state from its neighbor, from its enemies. Very simple. Okay, and for this purpose the British EIC will keep military troops. पहले तो military troops रख देंगे वहां,
तो यहाँ पे एक आर्मी बटालियन रख दी गई, मिलिट्री ट्रूप्स रख दी गई। एंड सेकेंड व्हाट विल हैपन, अ रेजिडेंट विल केप्ट, अ रेजिडेंट दैट विल बी ब्रिटिश, ब्रिटिश ऑफिसर, उसका नाम क्या होता था, रेजिडेंट। सो अ ब्रिटिश ऑफिसर और अ रेजिडेंट will be kept in the local ruler's court, and this resident will help and support this local ruler in maintaining its diplomatic affairs and solving succession disputes। ठीक है, वो डिप्लोमेटिक अफेयर्स को मेंटेन करने में, सक्सेशन डिस्प्यूट्स को मेंटेन करने में उसकी हेल्प करेगा। एंड हु विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ दिस मिलिट्री, दैट लोकल स्टेट। ठीक है, तो बहुत स्मार्टली उन्होंने क्या किया, अपने आर्मी का खर्चा भी इंडियन रूलर्स से ले लिया, राइट। सो द लोकल रूलर्स विल बियर द मिलिट्री एक्सपेंसेस, मिलिट्री एक्सपेंसेस का खर्चा भी लोकल रूलर्स ही बियर करेंगे। ओके, अब आप बताओ कि कोर्ट की सारी पॉलिटिक्स पता है रेजिडेंट को, उस स्टेट में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है, देयर इज द आर्मी ऑफ ईएसी इन दैट स्टेट। So what will happen? Gradually, will the East India Company establish its dominance and control over that state or not? Yes, that state will come under indirect influence of East India Company or not? Yes, that state will gradually lose its independent state or authority or not? Yes. तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी कि एक एक करके ऐसे स्टेट्स पे हमें धीरे धीरे क्या करते जाना है, इनडायरेक्ट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना है। और फिर जब राइट टाइम विल कम, अपना टाइम आएगा, व्हेन राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी विल कम, तो क्या किया जाएगा, डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ दीज स्टेट। जब सही टाइम आएगा, व्हेन द राइट टाइम विल कम, व्हेन व्हाट विल बी डन, डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ दीज स्टेट्स विल बी डन। दिस वाज द आइडिया। मेरी बात समझ गए? नाउ दिस इज क्लियर। वेलेस्ली इसी प्लान के साथ काम कर रहा है, एंड दिस इंटायर पॉलिसी वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ड्यूप्ले। दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, ये हमें पता है कि ये क्या था, ब्रेन चाइल्ड ऑफ ड्यूप्ले था। अब हम आते हैं मराठा पावर पे। ठीक है, मराठाओं के साथ क्या कंडीशन है, फिर से ये पहुंच जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, वही कहावत है, आ बैल मुझे मार, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे, ये स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझिए इस स्टोरी को। नाउ आई एम कमिंग टू द स्टोरी पार्ट हियर। ओके, आई थिंक दैट दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी पार्ट हियर। देखो स्टोरी यहाँ पे क्या है, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एट दिस story is very important because we can learn facts with the help of stories। story 1803 to 05 and keep maintaining running notes, sketch बनाते रहो, डायग्राम बनाते रहो, because the same notes you will revise। क्लास में जो आप सुनते हो, अपने हाथ से जो नोट्स बनाते हो, हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिवाइज दैट नोट्स। ठीक है ना, नए नए मटेरियल खरीदोगे तो थोड़ा पढ़ने में परेशानी होती है, कनेक्ट करने में परेशानी होती है। तो देखो कहानी क्या है। The story revolves around a plot, and here in this plot, one party is Peshwa. Read this. एक कौन है, पेशवा। The another party was okay, Sindhya. Sindhya. पेशवा and Sindhya chief. पेशवा, सिंधिया चीफ। और इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है, और वो है होलकर चीफ। पेशवा, सिंधिया चीफ एंड होलकर चीफ। ओके, आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ पेशवा, सिंधिया चीफ एंड होलकर चीफ, बट भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेंस समझना है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ द स्टोरी, दिस यू नीड टू पिक। तो हियर द पेशवा वाज बाजी राव टू, राइट द नेम। केवल स्टोरी का एसेंस आपको जानना है, एसेंस आप अपने आप समझ जाओगे स्टोरी समझने के बाद। द पेशवा वाज बाजीराव टू एंड द सिंधिया चीफ, सिंधिया पता है ना, मराठा कॉन्फेडरेट स्ट्रक्चर। टॉप पे कौन था, पेशवा, एंड देयर वर 4 कॉन्फेडरेट यूनिट्स, सिंधिया, भोसले, होलकर एंड गायकवाड़। नाउ द सिंधिया लीडर हियर वाज दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया। तो एक दूसरा कैरेक्टर तो इस स्टोरी में ये है, दौलत राव सिंधिया, सिंधिया चीफ। और तीसरा कैरेक्टर जो है दैट इज ओके, होलकर चीफ, एंड द नेम ऑफ दिस होलकर चीफ वाज यशवंत राव होलकर। राइट दिस नेम, यशवंत राव होलकर।
यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर, ही वॉज द होलकर चीफ। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया था। प्रॉब्लम ये हो गया था कि इन दिस कॉन्फेडरेशन देयर वर 4 यूनिट्स। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था? बिटवीन दीज यूनिट्स। दिस इज व्हाट? लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी अमॉन्ग द रीजनल पावर्स। फॉर एग्जाम्पल, सिंधिया एंड होलकर, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। दिस इज ऑल्सो व्हाट? लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। आपस में लड़ते रहते थे सिंधिया एंड होलकर। फिर क्या होता है, और देखो क्या होगा, these units, the chiefs of these unit, will they aspire to become पेशवा or not? Yes, वो पेशवा बनना चाहेंगे। जैसे होलकर चीफ चाहेगा कि मैं पेशवा बन जाऊं, सिंधिया चीफ चाहेगा कि मैं पेशवा बन जाऊं। इट मीन्स व्हाट हैज स्टार्टेड हियर, एक तो हम क्या देख रहे हैं कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड दैट इज कॉन्फ्लिक्ट फॉर पेशवा से। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्फेडरेट यूनिट्स। और ये भी कॉन्फ्लिक्ट किस लिए है? कॉन्फ्लिक्ट फॉर पेशवा से। इसमें it means that this is the time when Maratha Empire, in Maratha Empire we see internal dissensions, internal conflict, and this will make Maratha power weaker or powerful. So this will make Maratha power weaker, Maratha power weaker. So you can write here that in Maratha power, what we are seeing here, okay, fight for Peshwas, fight for Peshwas। एक तो ये प्रॉब्लम चल रही थी, फाइट फॉर पेशवा से। और दिस फाइट और कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सीन, ओके, देयर वर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हियर, टाइप 1 एंड टाइप 2। पहला क्या है? फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स और फाइट फॉर सक्सेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू फैमिली डिस्प्यूट्स एंड फाइट फॉर सक्सेशन। एग्जाम्पल क्या था? रघुनाथ राव केस, this was an example। Raghunath Rao case, this was an example, family dispute का example है। And what is the second type here? Second is what? Okay, conflict between confederate units and their aspirations to get पेशवासिप, ठीक है, their political aspirations। तो second type here, read this, conflict between confederate units, conflict between confederate units and their political aspirations, and their political aspirations for Peshwaship, for Peshwaship, and their political aspirations for Peshwaship, ठीक है ना? Conflict between confederate units and their political aspirations for Peshwaship। पेशवाशिप के जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, इसको देखना है, ठीक है, राइट। इतनी बात समझ में? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखो, यह होलकर चीफ वॉज वेरी मच पावरफुल, ये बहुत पावरफुल हो गया, वॉज वेरी मच पावरफुल। और जो पावरफुल हो जाएगा वो पेशवा बनना चाहेगा कि नहीं? यस, वो पेशवा बनना चाहेगा। ही वॉज ऑलरेडी पावरफुल एंड ही वॉज हैविंग एस्पिरेशंस, ओके, एंड ही वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ सिंधिया ऑल्सो, ये सिंधिया से भी लड़ता रहता था। और दूसरा, ही वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ पेशवा ऑल्सो, पेशवा से भी लड़ता रहता था, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। नाउ दीज टू विल कम टुगेदर, पेशवा एंड सिंधिया विल कम टुगेदर अगेंस्ट whom? अगेंस्ट होलकर। पेशवा एंड सिंधिया विल कम टुगेदर अगेंस्ट होलकर। तो अब देखो ग्रुप कैसे बन रहा है। नाउ पेशवा प्लस सिंधिया दे आर टुगेदर एंड अगेंस्ट होलकर दे आर फाइटिंग, अगेंस्ट होलकर दे आर फाइटिंग, ठीक है। ये चीज चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और एक बार पेशवा को रास्ते में मिल गया यशवंत राव होलकर का छोटा भाई, ठीक है, तो बदला ले लिया इसने, ओके। यशवंत राव होलकर्स यंगर ब्रदर वाज विठोजी राव होलकर। और पेशवा ने क्या किया? पेशवा गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड ही किल्ड यशवंत राव होलकर्स ब्रदर, ठीक है। यहां से कहानी चेंज हो जाएगी। सो रेड दिस, यशवंत राव होलकर्स ब्रदर वाज विठोजी राव होलकर, भाई का नाम था विठोजी राव होलकर। रेड दिस, विठोजी राव होलकर, विठोजी राव होलकर, विठोजी राव होलकर,
ये भाई का नाम है। और पेशवा को अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, एंड ही डिड व्हाट, ही किल्ड बिठोजी राव होलकर। बिठोजी राव होलकर को किल कर दिया इसने। ही किल्ड बिठोजी राव होलकर। और यशवंत राव होलकर वॉज वेरी पावरफुल। अब वो हाथ धो के किसके पीछे पड़ जाएगा? पेशवा के पीछे, सिंधिया के पीछे। ही वॉज ऑलरेडी वेरी मच पावरफुल। नाउ ही विल डिफीट बोथ दीज टू फोर्सेस। इन दोनों को हराएगा। ही विल डिफीट पेशवा ऑल्सो एंड ही विल डिफीट सिंधिया ऑल्सो। अब पेशवा अपनी जान बचाने के लिए कहाँ भागेंगे? लॉर्ड वेलेस्ली के पास। ठीक है। नाउ पेशवा विल गो टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम यशवंत राव होलकर। कहा भाई बचा लो यशवंत राव होलकर से। ठीक है। पेशवा भागा भागा पहुंच गया किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन था गवर्नर जनरल? इट वाज लॉर्ड वेलेस्ली। तो हमेशा वो एक डॉक्यूमेंट अपने हाथ में रखता था। कौन सा डॉक्यूमेंट? सब्सिडी अलायंस वाला। और जैसे ही पेशवा उसके पास पहुंचेगा कहेगा भाई आई विल प्रोटेक्ट यू, साइन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को साइन करो, तभी तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा। ये डॉक्यूमेंट आपको क्या बना देगा? प्रोटेक्टरेट स्टेट, एंड आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर एनिमीज। मेरी बात समझ गया? नाउ द सेकेंड टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन इन द इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ मराठास। कमी किसमें थी बताओ? कमी इंडियन पावर्स में। ओके, वी शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट कॉमन एनिमी ना, बट हम आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या थी। और समस्या आज भी हम आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, चल रहा है, सिस्टम कंटिन्यू है। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई नहीं बोलता, बट आप देख लो हिंदू मुस्लिम, ठीक है, ये लड़ाई एकदम जोरों पे रहता है, हमेशा डिबेट रहता है। So this is our weakness. As an Indian society, we all are united here. This we should understand. Okay. Now what will happen here? So the concept is very simple. Now Peshwa will go to East India Company to protect him from Yashwantrao Holkar. And there was Lord Wellesley. And Lord Wellesley will ask Peshwa to sign this document, and this document is subsidiary alliance. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्या है? सब्सिडियरी अलायंस। ओके, पेशवा ने कहा पहले तो अपनी जान बचानी है, जो डॉक्यूमेंट देना है लाओ, मैं साइन कर देता हूँ। नाउ पेशवा विल साइन द डॉक्यूमेंट एंड अ ट्रीटी विल बी साइंड बिटवीन पेशवा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1802। एक ट्रीटी साइन हो गई, एंड दिस ट्रीटी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है मैच करने के लिए। दिस ट्रीटी इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ बसीन। This treaty is called Treaty of Basin. ठीक है, so obviously it is clear it was signed between EIC and Peshwa. And who was the Peshwa? So the answer is Bajirao was the Peshwa. So it was signed between EIC and Peshwa. अच्छा, इस treaty का nature क्या है? What is the nature of this treaty? It is a subsidiary alliance treaty. ऑप्शन वाले बच्चे को थोड़े प्रोविजंस भी पढ़ने होते हैं, बट हियर वी आर फ्री फ्रॉम दैट. So the nature of this treaty, write this. The nature of this treaty was subsidiary alliance treaty. Nature of this treaty was subsidiary alliance treaty. Now, look at the concept. Concept is very simple. This is Peshwa. Peshwa was the boss, and there were 4 confederate units. We all know this. One is Sindhia, the second is Bhosle, the third is Holkar, and the fourth is Gaikwad. Okay? There were 4 confederate units. Now you tell me, if Peshwa will sign this treaty, will this treaty be applicable on the units also? आपका बॉस ही साइन करके चला आया, तो वो ट्रीटी तो आप पे भी अप्लाई हो जाएगी ना. मराठा एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. बेसिकली different territories were given to different Maratha chiefs to rule and control, and that was a kind of loose federation. So if Peshwa will sign this treaty, if Peshwa will sign this treaty, the provisions of the treaty will be applied on all. The provisions of treaty will be applied on confederate units also. ये provision तो confederate units पे भी apply हो जाएगा. This provision will be applied on confederate units also. Now all come under this subsidiary alliance. अब subsidiary alliance में सब आ जाएंगे.
all will come under the subsidiary alliance. Now साइन ट्रीटी कब हो रही है? 1802 में. और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट कब हो रहा है? व्हाट इज द ईयर? स्टोरी फिर से रिलेट करो. व्हाट इज द ईयर? 1803. तो ये गैप क्यों है 1 ईयर का? व्हाई 1803? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. द ट्रीटी वाज साइंड इन 1802 एंड द वॉर स्टार्टेड इन 1803. व्हाई? कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो आप? कुछ गेस कर सकते हो? देखो, once treaty, exactly, once treaty will be applied, after 1 year, after some time, the confederate units will realize that this was a great mistake. मेरी बात समझ गया? We have signed the treaty and gradually we are losing our independence and control. ये तो बहुत गलत हो गया. हमारा बॉस ट्रीटी साइन करके आ गया और नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है. ठीक है भाई, किसी भी चीज़ का फ़ायदा और नुकसान तब जानोगे ना जब उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे कुछ टाइम तक. यही है, सब्सिडी अलायंस एक प्रोडक्ट है. कुछ टाइम यूज करने के बाद पता चला कि अंग्रेज़ों ने हमें बेवकूफ़ बना दिया. और ये समझदारी सबको एक साथ आएगी कि अलग अलग टाइम पे? सबका दिमाग एक साथ खुल गया होता तो अंग्रेज़ भारत में शासन कैसे कर पाते? ठीक है, किसी को जल्दी अकल आएगा, किसी को देर से अकल आएगा. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? सिंधिया एंड भोसले विल रियलाइज. अब ये दो यूनिट्स हैं, सिंधिया एंड भोसले. सो आफ्टर सम टाइम सिंधिया एंड भोसले विल रियलाइज, read this, after some time Scindia and Bhosle will realize that this treaty was a great mistake. अब यहाँ पे भी अकल सबकी एक साथ नहीं खुल रही है. Scindia and Bhosle will realize that this treaty was a great mistake. ये treaty क्या है? Great mistake. Okay, by this treaty, write this point, by this treaty they are gradually losing their independent status. By signing this treaty, by this treaty they are gradually losing their independent status. ठीक है, ये realize हुआ that they are gradually losing their independent status, right? Now what they will do? They will deny to accept the terms and conditions of this treaty. Scindia and Bhosle will deny to accept the terms and conditions of this treaty. Okay, Scindia and Bhosle will deny to accept the terms and conditions of this treaty. अब जब आप इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने से मना करोगे तो ईस्ट इंडिया क्या कहेगी? आपके बॉस ने साइन किया है, आप मना करने वाले कौन होते? योर बॉस हैज साइंड दिस ट्रीटी, so why you are denying? It means we will fight war with you and will forcefully impose the conditions of treaty on you. ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि यूनिटी नहीं है यहाँ पे. क्यों यूनिटी नहीं है? समझो इस बात को. Who is opposing? सिंधिया एंड भोसले आर opposing. अपोज कौन कर रहा है? सिंधिया और भोसले. नाउ दे विल आस्क फॉर द सपोर्ट ऑफ होलकर. होलकर पावरफुल था बट होलकर विल से जाओ तुम्हारी समस्या है, तुम निपटो, इस बार मैं नहीं बोलूंगा. ओके, सो सिंधिया एंड भोसले कम्स टुगेदर. राइट दिस. होलकर did not provide help and support. Did not provide help and support. होलकर did not provide help and support. होलकर ने तो help and support provide ही नहीं किया. होलकर did not provide help and support. ठीक है, वो उसने सीधे मना कर दिया. He denied. And what about गायकवाड़? गायकवाड़ will remain neutral. कहा भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा. ठीक है, ना हाँ बोलूंगा ना बोलूंगा. ठीक है, तो गायकवाड़ remains neutral. गायकवाड़ remains neutral. ओके, पेशवा बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, सारी कहानी देख रहा है. पेशवा इज साइलेंट. पेशवा इज म्यूट. पेशवा यहाँ पे क्या है? म्यूट. सिंधिया भोसले आर अपोजिंग. होलकर डिड नॉट सपोर्ट. ये एसेंस ऑफ द स्टोरी है, ये बात आपको समझनी है. एंड व्हाट अबाउट गायकवाड़? गायकवाड़ रिमेन्स न्यूट्रल. दिस इज व्हाट? लैक ऑफ यूनिटी. यही है लैक ऑफ यूनिटी. इसी को कहते हैं लैक ऑफ. दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ यूनिटी. Now, is it easy for British to fight war and defeat these powers? Yes. British will fight separate wars. Okay, with Scindia, they will fight a war that was fought near Aurangabad, that was Battle of Asai, and with
भोसले दे विल फाइट अ वॉर दैट इज बैटल ऑफ अरगांव नियर बुरहानपुर। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये और कोर फैक्ट्स हो गया। इट मीन्स ईआईसी विल फॉट, ईआईसी विल फाइट वॉर्स विथ सिंधिया, ईआईसी विल फॉट सेपरेट वॉर विथ भोसले, दोनों के साथ अलग अलग बैटल। और यहाँ पे भी दोनों एक साथ लड़ रहे हैं कि अलग अलग लड़ रहे हैं? अलग अलग लड़ रहे हैं। सिंधिया ने अकेले लड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और भोसले ने अकेले लड़ा। यही है डिवाइड एंड रूल। कितने आसानी से ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल किया है यहाँ। दिस इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। बोथ विल बी डिफीटेड एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी विल से, वेलेस्ली कहेगा डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ सब्सिडी अलायंस, अब साइन कर दो। पहले कह रहे थे यार बॉस ने साइन किया, मैंने साइन नहीं किया, अब चलो तुम साइन कर दो। तो क्या करना पड़ा? साइन करना पड़ा। सिंधिया एंड भोसले विल साइन, ओके। इनसे भी साइन करवाया। हियर सब्सिडी अलायंस, ओके, विल बी फोर्सफुली साइन। अब आप बताओ, कॉलोनियल हिस्टोरियंस लिखते हैं कि हमने तो लोकल स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया, इसे प्रोटेक्ट करना कहते हैं। ठीक है, किसी के सर पे गन लगा दो और फिर कहो कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, आई वॉन्ट हेल्प यू, मुझे मौका दो हेल्प करने का। ये कौन सा हेल्प करना होता है भाई, राइट? तो सिंधिया और भोसले व्हाट हैपेंड, ओके, दे वर डिफीटेड एंड दे विल हैव टू साइन टू डिफरेंट ट्रीटीज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नोइंग कि तीसरा आदमी बहुत पावरफुल है इसमें, जिसका नाम क्या है? यशवंत राव होलकर। तो उनके निशाने पे सबसे पावरफुल आदमी तो हमेशा रहेगा होलकर। अच्छा बताओ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का टारगेट क्या होगा? होलकर। वेलेस्ली कहेगा चलो होलकर से भी साइन करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट। एंड व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी विल फाइट विथ होलकर, क्या उसके सपोर्ट में सिंधिया और भोसले आएंगे? नहीं, दे विल नॉट इन सपोर्ट ऑफ सिंधिया एंड भोसले। सो राइट दिस, EIC will fight war with Holkar also, and Holkar will also be forced to sign subsidiary alliance treaty. Okay, Holkar will also sign subsidiary alliance treaty. ठीक है, होलकर भी सब्सिडी अलायंस ट्रीटी को साइन करेगा। गॉट इट? मेरी बात समझ गए? मेनी स्मॉल बैटल्स वेर फॉट विद डिफरेंट लोकल पावर्स, बहुत सारे ऐसे बैटल्स भी होते होंगे। ठीक है, लास्टली यहाँ पे ट्रीटी किसके साथ साइन होती है? दैट इज, राइट दिस, 1805 में। यस, राइट हियर देयर इज अ नेम ऑफ ट्रीटी, राइट, 1805 देयर इज अ नेम ऑफ ट्रीटी एंड दैट इज ट्रीटी ऑफ, राइट, ट्रीटी ऑफ 1805 there is a treaty, that is treaty of Rajpur Ghat, treaty of Rajpur Ghat, Rajpur Ghat, treaty of Rajpur। लास्ट टारगेट कौन था बताओ? होलकर यहाँ पे है। तो 1805 की, नहीं नहीं अभी गायकवाड़ नहीं आया, गायकवाड़ के साथ भी ये साइन करेंगे। 1805 दे साइन ट्रीटी विथ होलकर। सो राइट दिस, 1805 दे साइन ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट विथ यशवंतराव होलकर। दे साइंड ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट विथ यशवंतराव होलकर। अलग अलग ट्रीटीज साइन किए। ठीक है, अब स्टोरी को फिर से समझो। 1803, 1805 सब्सिडी अलायंस किसके साथ साइन हुआ? 1802 इट वाज साइंड विथ पेशवा। इट वाज एप्लीकेबल ऑन ऑल सिंधिया, भोसले, होलकर एंड गायकवाड़। सिंधिया भोसले अपोज्ड, they were defeated and again subsidiary alliance was signed with them. Then Holkar was defeated, subsidiary alliance was signed with them. अच्छा, अगर गायकवाड़ ने कुछ नहीं बोला तो ये अंडरस्टूड है कि उसके साथ सब्सिडियरी अलायंस एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस बेसिकली क्या होगा? दैट इज सिंधिया, भोसले, होलकर, पेशवा और लास्ट में जो इसके बाद वाला वॉर पढ़ोगे वहां पे गायकवाड़ आ जाएगा। तो दिस इज द सीक्वेंस of subsidiary alliance that was signed with Peshwa and the other Maratha Confederate units। कितना आसान है, ठीक है। सिंधिया, भोसले, होलकर, लास्ट में हम गायकवाड़ को ले आएंगे, राइट। फर्स्ट में क्या आ जाएगा? पेशवा। ठीक है, पेशवा। नाउ दिस टॉपिक, व्हाई वी स्टडीड दिस, नाउ यू अंडरस्टैंड बेटर दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। अब आपको समझ में आ गया ना? क्या इस तरह से प्रोटेक्टेड स्टेट बनाया जाता है? नहीं। Was it an aggressive policy? Yes.
treaties were forcefully imposed on the local states. इतनी बात समझ में आई? So second Anglo-Maratha war started with which treaty? Treaty of Bassein. Second Anglo-Maratha war ended with which treaty? Treaty of राजपुर घाट. So write this statement. This statement can be asked in exam और फिर से यहाँ पे events को interchange किया जा सकता है. So that is why it is important. So write this और highlight कर लेना इस line को. Right. Second Anglo-Maratha war started with Treaty of Bassein. Bracket में लिख लेना 1802. Second Anglo-Maratha war started with Treaty of Bassein, that is 1802, and ended with Treaty of Rajpur Ghat, that is 1805. Ended with Treaty of Rajpur Ghat, that is 1805. Ended with Treaty of Rajpur Ghat, 1805. मेरी बात समझ गया? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, यहाँ आपने देखा वीकनेस ऑफ मराठा पावर, ओके, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्पिरेसीज, फाइट फॉर पेशवाशिप. नाउ द नेक्स्ट वॉर, राइट, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, दैट इज द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, इज 1817-18. 1817-18. बताओ, ड्यूरिंग दिस टाइम इट मीन्स सेकेंड एंडेड इन 1805. सेकेंड वॉर एंडेड इन 1805 और इसके बाद से गैप कितने साल का है? ऑलमोस्ट 12 इयर्स गैप. 12 इयर्स गैप. ओके, नाउ बिटवीन दिस पीरियड मराठास आर पावरफुल और वीकर? आप बताओ. वीकर, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी साइंड विच ट्रीटी? Subsidiary Alliance Treaty. They have already signed Subsidiary Alliance Treaty. So in this gap of 12 years, what is the experience of Maratha chiefs and the Peshwa? उनका क्या experience होगा? That we have committed mistake. We all should be united together. अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. We should fight with East India Company together. East India Company is exploiting Maratha Empire. They have forcefully imposed Subsidiary Alliance Treaty on us, okay, and we are losing our independent state and authority. This is also a compromise with our pride and self-respect. ठीक है, इनको ज्ञान होगा, ठीक है, इन 12 years में कि हमने क्या गलती कर दी, right, that we should be united. They will realize this in these 12 years. So in this 12 years gap, Maratha power, Maratha Peshwa and its confederate units will realize all their mistakes, and its confederate units will realize all their mistakes. They will realize all their mistakes. अपनी सारी गलतियों को ये realize करेंगे. They will realize all their mistakes. They will realize all their mistakes in these 12 years. Okay, now they realize that they have lost their independent authority and control. Okay, they realized that they have also compromised with their pride and self-respect. Pride and self-respect. They realized that they have also compromised with their pride and with their self respect. अपने pride के साथ self respect के साथ compromise किया है. Okay, now a situation will emerge here. अच्छा, in 12 years में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ है? Now they are familiar with Maratha weaknesses of Maratha power. उनका रेजिडेंट तो मराठा कोर्ट में ही रह रहा है. Now they are familiar with कोर्ट कॉन्स्पिरेसी, वीकनेस ऑफ मराठा पावर, वीकनेस ऑफ मराठा आर्मी, आपके क्या क्या स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स हैं, लोकेशंस हैं, वॉर होने पे किन स्ट्रैटेजिक पोस्ट और लोकेशन से आप ईस्ट इंडिया कंपनी पे बढ़त बना सकते हो. नाउ दे आर फैमिलियर विथ ऑल दिस. ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए. रेजिडेंट क्या है? घर का भेदी है, बैठा हुआ है कोर्ट में. रेजिडेंट इज इन द कोर्ट. नाउ व्हाट विल हैपन? अ न्यू सिचुएशन इमर्ज हियर in third Anglo-Maratha war, right?
Pindari issue. Write this. Pindari issue. Pindari issue. Pindaris. Okay. Pindaris. Now, who were the Pindaris? So Pindaris were mercenary soldiers. भाड़े के सैनिक थे. ठीक है. भाड़े के सैनिक means if you are a local ruler and if you want military help and support of Pindaris, so you will offer them money and they will come help and support you. ये था Pindaris. Okay. So Pindaris were irregular forces. Irregular forces. They were mercenary soldiers. They were mercenary soldiers. भाड़े के सैनिक थे. They were mercenary soldiers. They were irregular forces. They were the mercenary soldiers. Generally, you can offer them money and they will fight for you. वो आपके लिए fight करेंगे. But at most of the time, these Pindaris were helping and supporting Maratha forces. जब मराठास पावरफुल थे तो मराठास हमेशा किसकी हेल्प और सपोर्ट लिया करते थे? पिंडारीज की. तो मराठास और पिंडारीज में एक बॉन्ड बन गया था. मेरी बात समझ गए? दे वर कॉन्टिन्यूसली टेकिंग हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ पिंडारीज. अच्छा एक बात बताओ कि व्हेन मेरे मराठा पावर विल बी वीकर, रेजिडेंट बैठा हुआ है वहां, तो क्या वो पिंडारी की हेल्प और सपोर्ट लेने देगा? नहीं. तो पिंडारीज का एक तरह से वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट है. जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, काम धंधा है. जब काम धंधा उनका स्लो हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? उनको पता है किसकी वजह से हुआ है. किसकी वजह से हुआ है? ईआईसी की वजह से हुआ है. तो whenever they will see the trading caravans of East India Company, they will plunder it, लूट लेंगे उसको. ठीक है. अब अलग मुसीबत हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को. पिंडारीज ने क्या किया? ठीक है. दे स्टार्टेड डिसरप्टिंग ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. दे विल स्टार्ट लूटिंग द ट्रेडिंग caravans of East India Company. Now they have created law and order situations for the East India Company because they are very angry with what has happened with the Marathas, because both of them has developed a good bonding. ठीक है. पिंडारी, एक फिल्म भी आई थी सलमान खान की, वीर, जिसमें वो पिंडारी बना हुआ है. राइट. सो दीज आर द पिंडारीज. दिस इज द केस हियर. नाउ ब्रिटिश आर वेरी स्मार्ट. इनकी पॉलिसी क्या है? डिवाइड एंड रूल. ठीक है. और डिवाइड एंड रूल क्या करेंगे? नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रियलाइज दैट हु इज क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर देम. चैलेंज कौन क्रिएट कर रहा है? पिंडारी. नाउ दे विल आस्क मराठा रूलर्स एंड द मराठा चीफ्स that we are going to launch a military campaign against Pindaris and you all will come and support East India Company because we are in subsidiary alliance treaty. Both will help and support each other. So East India Company is going to launch a military campaign against Pindaris and you will have to come and support. देखो कितने खतरनाक हैं. दो दोस्त हैं. क्या कह रहा है कि आपके साथ सब्सिडी अलायंस है तो चलो अब पिंडारीज से लड़ने चलो. Now Maratha power, Peshwa, chiefs, confederate units, they are thinking that no, we will not do. We will not help and support East India Company against the Pindaris. और जैसे ही वो ये अपोज करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी विल से अच्छा पिंडारीज के खिलाफ हमारी मदद नहीं करोगे, तो जो मिलिट्री कैंपेन हम पिंडारीज के खिलाफ लॉन्च करने जा रहे हैं, वो मिलिट्री कैंपेन अब किसके खिलाफ होगा? आपके खिलाफ होगा. एंड व्हाट विल हैपन? The Pindari's military campaign will be diverted towards the Maratha chiefs. और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? Because they want annex Maratha Empire completely under the British Empire. Maratha Empire को पूरी तरह से क्या करना चाहते हैं? वो annex करना चाहते हैं. Got it? So this they will do. Okay. So here which issue is the prominent issue for the outbreak of third Anglo-Maratha War? So that is Pindari issue. Okay, so have you written this, that the Pindaris were irregular forces, mercenary soldiers, right, who were constantly helping and support, who were constantly helping and supporting Marathas in their military campaigns, who were constantly helping and supporting Marathas in their military campaign. Marathas की help करते थे, support करते थे, right? Right, next point. Now Pindaris had started creating. Now Pindaris had started creating. Now Pindaris had started creating. Now Pindaris had started creating law and order challenges for the Marathas. Now Pindaris had started creating law and order challenges for the Marathas.
for the East India Company. Law and order challenges for the East India Company. Okay. Disrupting trade and commerce of EIC. Disrupting trade and commerce of EIC. Disrupting trade and commerce of EIC. Got it? Now what will happen? Right, next point. Okay. EIC asked the support of Maratha powers against Pindaris. EIC asked the military help and support of Maratha powers. EIC asked for military help and support of Maratha powers against Pindaris. EIC asked for military help and support of Maratha powers against Pindaris. पिंडारीज के खिलाफ क्या चाहिए? मिलिट्री हेल्प एंड सपोर्ट. मिलिट्री हेल्प एंड सपोर्ट अगेंस्ट Pindaris. They asked for this military help and support against Pindaris. Got it? Okay. Right. Next point. Marathas did not intend to do so. Marathas did not intend to do so. Maratha ऐसा करना नहीं चाहते थे. Marathas did not intend to do so. Right. Next point. And in this way, the Pindari military campaign was directed against Marathas. And in this way, the Pindari's military campaign was directed against Marathas. Pindari military campaign was directed against Maratha. अब वो military campaign किसकी तरफ shift हो गया? Marathas की तरफ. Right. Many battles were fought. Many battles were fought. Okay. And finally, all the Maratha chiefs, including Peshwa, were defeated. And finally, all the Maratha chiefs, including Peshwa, were defeated. And finally, all the Maratha chiefs, including Peshwas, were defeated. समझ पा रहे हो इस बात को? सबको हरा दिया. Okay. It means the Maratha power, read this, the Maratha power was crushed completely. Maratha power was crushed completely. Maratha power was crushed completely. अच्छा, इसमें एक इवेंट है जो मतलब कई बार ऐसे न्यूज़ में आ चुका है. महाराष्ट्र भीमा कोरेगांव इंसिडेंट सुना है आपने? यहाँ पे कुछ दलित ग्रुप्स और मराठास के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले सुनने में आई थी. उसका रीज़न क्या था? तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, since British were not believing in this four varna system, untouchability and all this, so they gave equal opportunity to the Shudras also to be a part of army. ठीक है? So Dalits were the part of East India Company army. Hindus were also there, all other groups of Hindus, Brahmins और राजपूत भी थे, दलित भी थे. तो देखो, ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था. महाराष्ट्र का एक जगह है भीमा कोरेगांव, वहाँ पे. तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी और दूसरी तरफ मराठास फाइट कर रहे थे. ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में वो जो बटालियन थी उसमें सोल्जर्स जो थे वो कौन से सोल्जर्स थे? दलित सोल्जर्स. और ये बैटल हुआ और इसमें मराठास की डिफीट हुई. ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हुई. ठीक है? अभी कुछ सालों पहले वहाँ पे कुछ दलित ग्रुप्स ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया कि दिस इज अ विक्ट्री ऑफ दलित्स ओवर द मराठास. ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हुआ जिसका मराठास ने क्या किया? अपोज किया. दे सेड दैट दिस इज हर्टिंग आवर मराठा प्राइड एंड सेंटिमेंट्स. ठीक है? क्योंकि आप इसको सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो? ये सेलिब्रेशन, ये जीत किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की थी. मेरी बात समझ गया ना? तो ये एक रीज़न था. कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में था, मतलब आ जाता है कभी कभी न्यूज़ में, अभी भी रहता है. तो ये दिस वाज अ एक्सप्रेशन ऑफ वन बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव. So in this way there were so many battles that were fought at that time. कई सारे battles हुए and finally Maratha power was crushed completely. Now what British will do? Again फिर से मैं बता रहा हूँ ना कि British followed what? Diplomacy. और उनकी डिप्लोमेसी क्या है ये बात आपको समझनी है कि किस तरह की डिप्लोमेसी है ब्रिटिश की. तो देयर डिप्लोमेसी इज, देखो क्या होता है. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1818 में खत्म हो रहा है ना. मराठा पावर इज क्रस्ड कंप्लीटली. नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ मराठा पावर एट दिस टाइम? मराठा पावर का सेंटर क्या था? बॉस कौन था? पूना. सॉरी, बॉस वाज पेशवा. बॉस वाज पेशवा एंड द सेंटर फ्रॉम वेयर ही वाज कंट्रोलिंग, वो सेंटर कौन सा था? पूना. इस घटना के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो. पूना वाज द सेंटर.
नाउ व्हाट ब्रिटिश विल डू, ब्रिटिश हैज डिफीटेड पेशवा along with confederate units, सबको क्रश कर दिया. नाउ दे विल चेंज द सेंटर ऑफ पावर ऑफ पेशवा फ्रॉम पूना टू कानपुर. अब इस पावर के सेंटर को ही चेंज कर देंगे. पेशवा के सेंटर को पूना से कहाँ लेके चले आएंगे, कानपुर में. कानपुर में. आप ये बताओ क्या इससे पेशवा की पावर और स्टेटस अफेक्ट होगी? ऑब्वियसली अफेक्ट होगी. मुगल एम्परर को अगर आप रेड फोर्ट से इलाहाबाद पहुंचा दोगे, पेशवा को पूना से कानपुर पहुंचा दोगे, ये तो आपकी डिप्लोमेसी है. मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, दिस इज द डिप्लोमेसी. ठीक है, मान लो मैं हिस्ट्री अच्छी पढ़ा रहा हूँ और कोई कोचिंग कहे नहीं अब आप हिस्ट्री नहीं पढ़ाओगे, अब आप पढ़ाओगे ज्योग्राफी, तो हो गया, कहानी खत्म. मेरी बात समझ गया ना? हर आदमी की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है. तो ब्रिटिश इसी पॉलिसी पे काम करते थे. पेशवा का सेंटर ऑफ पावर क्या है, पूना. फिर दोबारा पावरफुल हो सकता है, कहाँ भेज दो इसको, कानपुर. दूसरी चीज, ब्रिटिश वेर बिलीविंग इन व्हाट, वो अपने आप को कॉलोनाइजर्स के रूप में कभी नहीं दिखाना चाहते थे. हमेशा क्या दिखाना चाहते थे, दैट वी आर द लिबरेटर्स. देखो क्या कर रहे हैं 1818 में, राइट दिस, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, वन इज कॉलोनाइजर्स एंड द सेकंड इज लिबरेटर्स. तो ब्रिटिश आर ट्राइंग टू बिल्ड द इमेज ऑफ लिबरेटर्स. ठीक है, वो अपने आप को लिबरेटर्स का इमेज बिल्ड करने की कोशिश करेंगे. एंड हाउ दे विल डू दिस, दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो मैसूर में किया था. मैसूर में दे डिड व्हाट, ओके, they brought a minor son, or they brought a person from Wadiyar dynasty, and they will say that oppressive rule of Hyder and Tipu Sultan has ended, and we have re-established the pride and honor of Wadiyar dynasty. Wadiyar dynasty का बच्चा लेके आ गए हम, he will be the ruler. The same they will do here in Maharashtra also. They will do what, पेशवा को भेज देंगे कानपुर, and then they will bring, okay, a descendant of शिवाजी, शिवाजी के खानदान से एक आदमी को पकड़ लाएंगे, प्रताप सिंह को, and they will say that he is the Maratha ruler. और अब हमने क्या किया है, we have freed Marathas from the clutches of Peshwas who had hijacked the power. हमने मराठाओं को किसके कंट्रोल से आजाद कराया, पेशवा के कंट्रोल से आजाद कराया, जिन्होंने पावर को हाईजैक कर लिया था. देखो कितने स्मार्ट हैं. दे आर ट्राइंग टू वैलिडेट, मॉरली वैलिडेट देयर प्रेजेंस इन इंडिया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल. यहां भी है डिवाइड एंड रूल. So you can write here that in Satara, read this, a separate territory was carved out for the Maratha ruler, and they will bring back descendant of, they will bring back a descendant of Shivaji. Shivaji, okay. A separate territory was carved out, okay. That will be called Kingdom of Satara. बाकी सारा एरिया तो हड़प लेंगे ये, और इसको क्या कहेंगे, किंगडम ऑफ सतारा. एक छोटी सी टेरिटरी कार्व आउट करेंगे, दे विल कॉल इट किंगडम ऑफ सतारा, एंड दे विल ब्रिंग बैक अ descendant of Shivaji, a descendant of Shivaji. They will bring back a descendant of Shivaji, and here EIC will claim that, EIC will make claims that it had freed Maratha people. EIC will make claims that it had freed Maratha people from the clutches of Peshwas. It had freed Maratha people from the clutches of Peshwas. It had freed Maratha people from the clutches of Peshwas who had previously hijacked power in their hands. Who had previously hijacked power in their hands. It had freed Maratha people from the clutches of Peshwa, okay, who had previously hijacked power. Okay, right. In this way, here we see that, in this way, here we see that East India Company was trying to validate, trying to validate, trying to morally validate, right? This, in this way, here we see that AIC was trying to morally validate its presence in India. It was trying to morally validate its presence in India. यही फर्क होता है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में. कॉलोनियलिज्म में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि यहाँ तो हम आपकी मदद के लिए,
We are not colonizers. We are the liberators. इसलिए मैंने कहा colonialism, okay, is a well defined system of exploitation where the system of exploitation remains invisible. Subsidiary alliance में system of exploitation visible है कि invisible है? It is invisible, where it becomes very much difficult, okay, to realize that we are being exploited. आपकी अकल आएगी लेकिन देर से आएगी. So imperialism and colonialism, what we see that in colonialism imperialism is already included, but it is well defined. ठीक है? For example, if you have a girlfriend and the same girlfriend becomes your wife, तो जब वो गर्लफ्रेंड स्टेज में है तो वो imperialism है, और वो वाइफ बन गई तो क्या हो गया? This is just a joke. Seriously मत ले. ठीक है? So this is what imperialism and colonialism. Well defined system of exploitation is colonialism. ये बात आप समझ रहे हो? So these are 3 Anglo-Maratha wars. समझ में आया? All the concepts are clear, right? Now I will ask you some basic question जिसका आंसर अब आपको पहले से पता है, since you have already studied all the concepts. That if I ask you a question, that write a question, and this is your GS mains question, and the question is discuss the various factors, discuss the various factors that were responsible, discuss the various factors that were responsible for the decline of Maratha power in India. Discuss the various factors that were responsible for the decline of Maratha power in India. Discuss the various factors that were responsible for the decline of Maratha power in India. Acha, if you are writing introduction of this question, so simply you will write, okay, about Maratha power in the introduction of the question. ठीक है? और मराठा पावर के बारे में जो सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके पास वो क्या है? शिवाजी फाउंडेड दिस एम्पायर इन विच ईयर? 1674. But don't write the accurate year in the mains exam. Write like this, that the Maratha Empire was founded by Shivaji in second half of 17th century. 1674 क्या है? Second half of 17th century. इससे आपके आंसर का स्टैंडर्ड तुरंत बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर एग्जामिनर को लगेगा ये इन्फो पैंडेमिक वाला मरीज है. ठीक है? So don't do this. Okay? So you can write here that Maratha power was founded by Shivaji in, okay, the second half of 17th century. Second half of 17th century. Okay. और कोई इंट्रोडक्शन फिक्स नहीं होता, यू कैन राइट एज मेनी इंट्रोडक्शंस एज यू कैन डू. ठीक है ना? बट ट्राई टू राइट द इंट्रोडक्शन इन 15 to 20 वर्ड्स मैक्सिमम. सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, 17th century. दूसरी बात क्या लिख सकते हो? ओके, दैट in the declining phase of Mughal Empire, okay, Marathas were the most formidable power, okay, who were claiming to fill the political vacuum. ये भी आप लिख सकते हो. That Marathas, और simple लिख दो, Marathas were the contender of power during the declining Mughal phase. ये भी लिख सकते हैं कि Marathas were the main contenders of power. Marathas were one of the main contenders of power during declining Mughal phase. One of the main contenders of power during the declining Mughal phase. आपने ये बता दी, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है इंट्रोडक्शन को. आपको मार्क्स मिलता है मेन बॉडी से. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज रिटन टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, to support the main body. You will get marks from the main body, but if this answer is well structured, this might is a probability that you will get half or 1 marks, okay, more than the other aspirants. Okay, now in main body you will write the answers in point wise fashion. में लिखोगे. ठीक है? So what is the question? Factors that were responsible for the decline. So simply you will write that factors, okay, for the decline of Maratha power, and you will write in point wise fashion what are the factors.
ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिख दोगे? डिक्लाइन कब है? 1818 में। तो इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मराठा पावर डिक्लाइंड, ये कब लिखोगे? इन कंक्लूजन। मेरी बात समझ गए? नाउ टेल मी रीजंस, सजेस्ट मी सम रीजंस दैट व्हाई मराठा पावर डिक्लाइंड। बताइए रीजंस। वेरी गुड। ठीक है, पहले देखो, अब लैक ऑफ यूनिटी तो हम बता रहे हैं, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, अच्छा एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, फाइट फॉर सक्सेशन और सक्सेशन डिस्प्यूट्स, ये तो एक सबसे बड़ा रीजन है, राइट? तो एट दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सक्सेशन डिस्प्यूट्स। और जितना शॉर्ट पॉइंट लिख सकते हो उतना लिखो, कोई ज़्यादा लैंग्वेज वगैरह में लिखने की जरूरत नहीं है। राइट द की पॉइंट्स एंड यू विल गेट द मार्क्स। सक्सेशन डिस्प्यूट्स। अब सक्सेशन डिस्प्यूट्स के भी कितने फॉर्म है? हियर 3। पहला कहाँ है? मराठा रूलर्स। यस, मराठा रूलर में भी है ना, राइट दिस। ओके, सक्सेशन डिस्प्यूट अमोंग मराठा रूलर्स, मराठा रूलर्स में भी तो था। ओके, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल साहू एंड ताराबाई। एंड व्हेन यू आर राइटिंग आंसर you can write examples to support your argument, and that is a marks fetching idea, better idea through which we can get more marks। ठीक है, दूसरा क्या है? ओके, सक्सेशन डिस्प्यूट्स की आप बात कर रहे हो तो फाइट फॉर पेशवाशिप, फाइट फॉर पेशवाशिप, दिस इज ऑल्सो सक्सेशन डिस्प्यूट, फाइट फॉर पेशवाशिप। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फाइट फॉर पेशवाशिप? एग्जाम्पल इज बिटवीन, हाँ ऐसे लिख दो, हाँ फाइट फॉर पेशवाशिप। यस, एग्जाम्पल हियर यू कैन राइट रघुनाथ राव केस और राघोवा केस। एग्जाम्पल इज राघोवा केस, राघोवा केस। तो यहाँ पे दो सक्सेशन डिस्प्यूट्स तो हमें देखने को मिल गए। एक और चीज है, वो क्या है? पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ मराठा कॉन्फेडरेट यूनिट्स, ये भी एक रीजन हो गया। तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर दैट पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ मराठा कॉन्फेडरेट यूनिट्स, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ मराठा कॉन्फेडरेट यूनिट्स। ठीक है, दैट इज सिंधिया, भोसले, होलकर एंड गायकवाड़। नाउ द सेकेंड पॉइंट वी व्हाट वी कैन राइट हियर, आप बताओ कि दैट कॉन्फेडरेट मॉडल लूज कॉन्फेडरेट स्ट्रक्चर, सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, विल इट बी अ रीजन फॉर डिक्लाइन? यस, ये बिल्कुल जागीरदारी जैसा ही तो है कि आपने कुछ एक एरियाज कुछ एक पावरफुल मराठा चीफ्स को दे दिए, तो जब वो ज़्यादा पावरफुल होंगे उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बढ़ेंगी और उससे कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट होगा, जैसा कि इक्तादारी जागीरदारी में हुआ है, वैसा ही है सिस्टम। तो यू कैन राइट दिस लूज कॉन्फेडरेट, राइट दिस लूज कॉन्फेडरेट मॉडल, लूज कॉन्फेडरेट मॉडल। ओके, दिस इज सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़ सपोर्टेड बाय पेशवा। तो ये भी एक रीजन था, बिकॉज दिस मॉडल वाज व्हाट, based on this feudal tendency. So this is what, a kind of feudal tendency. So this feudal tendency will make the Maratha Empire weaker. और ये बना कैसे था? ये feudal tendency भी कैसे आया? तो वतन एंड सरंजाम सिस्टम से आया। तो वतन एंड सरंजाम सिस्टम is also an example of this feudal tendency. वतन एंड सरंजाम सिस्टम, loose confederate model, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्यूडल टेंडेंसी। ठीक है, और दूसरी जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? लैक ऑफ डिप्लोमेटिक आउटलुक among the Maratha rulers. They lacked diplomacy or not? Yes, they lacked diplomacy. So write this. The third point is lack of diplomatic outlook. Lack of diplomatic outlook. Okay. एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ? दिस लैक ऑफ डिप्लोमेटिक आउटलुक। एग्जाम्पल सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, देयर मराठाज एंड निजाम साइडेड विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, यही हुआ था ना। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ पे क्या हुआ था? मराठा प्लस निजाम दे साइडेड विथ, राइट, मराठास प्लस निजाम, राइट।
सेकेंड और थर्ड, मैसूर की बात कर रहा हूँ, एंग्लो मैसूर वॉर, हैदराबाद, मराठा निजाम, याद आया कुछ? पहले में क्या हुआ था? हैदराबाद ने मराठा और निजाम का सपोर्ट ले लिया था। दूसरे में, तीसरे में क्या होता है, राइट? फोर्थ में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी गेट देयर हेल्प एंड सपोर्ट। तो ये क्या है? लैक ऑफ डिप्लोमेटिक आउटलुक। ये और कहाँ विजिबल है लैक ऑफ डिप्लोमेटिक आउट, वेयर एल्स इज इट इज विजिबल? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दे फेल्ड टू गेट द सपोर्ट ऑफ लोकल पावर्स और chiefs, यहाँ भी विजिबल है ना? राइट दिस एग्जांपल आल्सो, दैट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, third battle of Panipat, that is 1761. Okay, they lacked, they could not get the help and support of local powers or the chiefs. This can also be one reason. Okay, lack of diplomatic outlook, lack of unity, we can say. Okay, lack of unity. This can also be a reason. Lack of unity, lack of diplomatic outlook. And what could be the next point here? Okay, तो देखो, the main source of revenue for the Marathas was, okay, Chauth and Sardeshmukhi. Okay, they frequently raided areas and they controlled Sardeshmukhi from these areas. तो देखो क्या है, when you are powerful, if you are forcefully collecting the taxes, the people are doing this because you are powerful. But when you will become weaker, what will happen? They will stop paying you the taxes. Now, what is the point here? That if you have generated a stable income, if you will overall your revenue system of administration, if you will generate some fixed source of revenue, so that will provide a lot of help when you are weaker. But what about the Marathas? They failed to generate, okay, the regular source of revenues. Their dependency on the revenues that they were forcefully collecting from the raided territories will prove to be very harmful for them. मेरी बात समझ गए? For example, 1761 के बाद क्या होगा? When Ahmad Shah Abdali will defeat, you will become weaker. Your weakness is exposed. So the areas which you are forcefully collecting Chauth and Sardeshmukhi, they will stop paying you Chauth and Sardeshmukhi. फरमान ऑफ 1719 आपको पता है कि मुगल एम्पर ने इनको अधिकार दिया। धीरे धीरे उस अधिकार को इन्होंने क्या किया? हेरिडिटरी बना लिया, उसको अपना जागीर बना लिया, वतन और सरंजाम बना लिया, उसको मराठा एम्पायर का हिस्सा बनाया और सिंधिया भोसले होलकर और गायकवाड़ के बीच में बांट लिया। ये सब क्यों हो रहा है? आपके पावर और इन्फ्लुएंस की बदौलत हो रहा है। तो जब आप वीक हो गए तो क्या ये चीजें बैकफायर नहीं करेंगी? Obviously they will backfire. So write this point, that Marathas failed to generate, Marathas failed to generate, Marathas failed to generate or definite or fixed source of revenue. Marathas failed to generate a definite or fixed source of revenue. Okay, and it proved disastrous for them. And it proved disastrous for them. It proved disastrous for them. ये उनके लिए क्या रहा? Disastrous रहा. Okay. It proved disastrous for them. Now the next question, if I ask you that Marathas failed to realize the true character and nature of East India Company in India, it will be correct or incorrect? Yes. So write this, Marathas failed to realize, Marathas failed to realize the true character, Marathas failed to realize the true character, okay, or nature of East India Company in India. They failed to realize the true character and nature of East India Company in India. ठीक है, they failed to realize the true character and nature of East India Company in India. ठीक है, कितने 5 points हो गए ना? This much is sufficient. Right? Conclusion. Conclusion में क्या लिख सकते हो? Right. Okay. Maratha power was subdued in the first half of 19th century. Maratha power was subdued in the first half of 19th century. Subdued in the first half of 19th century. Okay. And subsequently, EIC established itself as one of the major contenders of power
and subsequently EIC established itself as one of the major contenders of power, and subsequently EIC established itself as one of the major contenders of power. Now, next thing what I want to share with you is that first we will finish the modern Indian history. Okay, we will finish PYQs December, January onwards. Then I will take a session in which 3 or 4 classes I will take, and I will discuss all the GS PYQs, the answer formats. All the answers will be based on our classroom lectures. जैसे अभी जो आपने आंसर लिखा, have you used all the points that we have discussed in our classroom? Yes, so this is the idea. अगर हम बाहर से कुछ भी कंटेंट देखो, पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट व्हाट वी रीड, व्हाट वी अंडरस्टैंड, okay, we are making notes and we are using the same points while writing the answer. This will boost our confidence, and when we will start practicing a format for the writing answer, if we'll do it constantly, so answer writing will take less time. And in GS mains you have to write your answer in 7.5 minutes. One answer you will have to write in 7.5 minutes. ठीक है, 7 minutes और 7.5 minutes, इतना आपको टाइम मिलता है. तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी, फॉर्मेट कैसे इंप्रूव होगा, जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तभी होगा. और ये जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, मेरी बात समझ गए ना. और आप सब लोग किधर जाना चाहते हो, आसान रास्ते की तरफ. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन 15 days, 20 days. तो फिर क्या हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना सिलेक्शन के लिए. आज नहीं पढ़ोगे कल पढ़ोगे, आज नहीं फिनिश करोगे 10 बार किताब रिवाइज करोगे, प्रीलिम्स के पहले एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, बार बार आंसर लिखोगे, टेस्ट सीरीज करोगे. उससे बेटर आइडिया क्या है कि वंस यू आर लर्निंग द फंडामेंटल्स ऑफ एनी टॉपिक, पहली बार में ही उसके सारे फंडामेंटल्स को क्या करो आप, ठीक कर लो. तो आसान हो जाएगा कि नहीं. गिन के मॉड्यूल्स हैं ही कितने, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मेन तो यही है ना, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी. अगर आप फंडामेंटल्स पे पकड़ बनाते हो तो बहुत आसान हो जाएगा इस एग्जाम को क्लियर करना. ठीक है ना, रियलाइज होगा आपको धीरे धीरे, ग्रेजुअली यू विल रियलाइज दिस. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज सिख एम्पायर इन इंडिया. राइट, that is also a very important topic, Sikh Empire in India. Okay, Sikh power in India. Sikh are also one of the most important power here, so we need to know about the Sikh power also. That's a very important topic. Screen visible hai, Sikh power, is it visible? Okay, yes. Now this Sikh power, okay, there is a story here, and the story relates to the Bhakti movement in you can say that early medieval phase, the medieval phase, we have to relate that story. इस story को हम वहाँ से relate करेंगे, but generally when we talk about the Sikh power in India, right, so look at this map. Okay, here you will find that what has been here. देखो, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, that is what Sikh Empire. ये एरिया क्या है, सिख एम्पायर. सो सिख आर ऑल्सो द रीजनल पावर्स इन 18th सेंचुरी. ये भी क्या है, रीजनल पावर्स है. जैसे दिस इज निजाम डोमिनियन. निजाम डोमिनियन मीन्स व्हाट, हैदराबाद स्टेट. मैसूर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मराठास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अवध स्टेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, ठीक इसी तरह से वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, सिंध. इसके बाद और डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अफगान ऑल्सो. Sorry, we are going to discuss Sikh, then we'll discuss Afghan also, Sindh also. We will discuss this area, that is Travancore state also. Carnatic we have already discussed. Carnatic discuss कर लिया ना हमने, है ना. तो gradually we will be familiar with 18th century India. धीरे धीरे पूरे 18th century India का एक picture हमारे दिमाग में बनेगा. So that is needed. Okay, so I will discuss this concept with you. Okay, this is also you can say that this is related to a treaty, and that treaty I will discuss with you. Okay, now about this Sikh history, let's start with some of the basics. कुछ basics को मैं relate करूँगा. For example, okay, what are these basics? तो देखो, when we talk about socio-religious reforms in India, socio-religious reforms in India, socio-religious reforms in India, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट ऐसे राइटिंग में भी हेल्पफुल होगा, तो थोड़ा बैकलॉग में जाके चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना, राइट. आई एम नॉट डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट.
For example, when we talk about the socio-religious reforms in India, so why we are using these two words together, socio plus religious, दोनों चीज़ों को हम साथ साथ क्यों यूज करते हैं? Because our social practices are supported by some religious beliefs, customs, and practices. So, if you want to bring a reform in society, if you want to uproot an evil from the society, at the same time you will have to what? Counter. You will have to question some religious beliefs and practices. It means society and religion both are interdependent. They are closely linked with each other. We cannot separate these two elements completely. We cannot segregate these two elements completely, and that's why it has always been written together. हमेशा क्या किया गया है? साथ साथ लिखा गया है. For example, we believe in varnashram system, that is four varna system, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. So this varnashram dharma is supported by a religious belief. ये भी किससे supported है? एक religious belief से. And what is that religious belief? That is पुरुष शुद्ध. Okay? कि ब्रह्मा, ठीक है, ये सुना होगा आपने, that from mouth Brahmins have been originated, from hands arms Kshatriyas have been originated. तो बताओ, this is the social system, this is the structure, basic pillar of our social system, four varna system or the varnashram dharma, but it has been supported by some religious belief or not? Yes. तो ये क्या है? एग्जाम्पल, सोशल प्रैक्टिस और कस्टम दैट इज सपोर्टेड बाय रिलीजियस बिलीफ. आप ये बताओ, सोशल एविल्स आर दे आल्सो सपोर्टेड बाय रिलीजियस बिलीफ्स? जैसे पिछली क्लास में आपको बताया था, वही एग्जाम्पल लेता हूँ. कस्टम ऑफ सती, was it supported by some religious belief? Yes. People believed that once the women will opt to become sati, she will become goddess. ठीक है, ये तो religious belief हो गया. Now tell me that this religious belief is the part of true interpretation of our religion or misinterpretation. ये किसका हिस्सा है? क्या ये misinterpretation है कि exact interpretation of our religious beliefs? This is misinterpretation. इसका मतलब ये हुआ कि those social evils which we see in our society today also, those religious evils which we see in our society today also are supported by some religious beliefs, but these religious beliefs are not the true interpretations of the religion. They are what? Misinterpretations of the religion. मेरी बात समझ गया ना? So when you start rejecting those misinterpretations, जब आप उन मिसइंटरप्रिटेशंस को रिजेक्ट करने लगते हो, क्वेश्चन करने लगते हो, व्हेन यू, फॉर एग्जांपल, स्वामी दयानंद सरस्वती सेड व्हाट? रिटर्न टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो. क्यों कहा उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने, दैट रिटर्न टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो? क्योंकि वेदों के बाद जो कहानी डेवलप हुई है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आए हैं, सारी बीमारी की जड़ वही है. दे आर व्हाट? मिसइंटरप्रिटेशन. स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वेदास, वेदों की ओर लौटो. वहां जाओगे तो वहां यू विल फाइंड व्हाट? प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजन. वहां आपको धर्म का वास्तविक स्वरूप मिलेगा. यू विल नो व्हाट इज द एग्जैक्ट टीचिंग ऑफ आवर रिलीजन. मेरी बात समझ गया ना? तो मिस इंटरप्रिटेशंस ने बहुत बेड़ा गर्क किया इस देश का, इस समाज का. तो देखो, इन सोसाइटी देयर वर डिफरेंट टाइम पीरियड व्हेन social and religious evils became part of our social custom and practices. बहुत बार ऐसा हुआ. For example, in Vedic period, what happened? Previously, the nature of society, the nature of religion, it was all pure. सब ठीक था. But gradually, what happened? Evils started entering into our society, into our religion. And what happened in ancient India? देखो, ancient India का एक topic है, एंशिएंट इंडिया, यू विल रीड अबाउट दिस. जैसे एक चैप्टर क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसके बाद एक चैप्टर आता है वैदिक कल्चर. इसके बाद एक चैप्टर आता है महाजनपद एरा. एंड इन दिस महाजनपद एरा यू विल फाइंड द राइज ऑफ न्यू रिलीजन. द राइज ऑफ न्यू रिलीजन. यहाँ पे जो टाइम पीरियड है दैट इज 600-300 BC. एंड हियर यू विल रीड अबाउट द
बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहीं पे आप किसके बारे में पढ़ते हो? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। देयर आर अदर रिलीजन्स एज वेल, but these are the two most important religions. Now what Buddhism and Jainism did in 600-300 BC period? Okay, they opposed, or they were like the reaction against the growing social and religious complexities of वैदिक एज। यानी वैदिक एज में सोसाइटी और रिलीजन में जो कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जो बुराइयां आ गई थी, उनका अपोज किसने किया? बुद्धिज्म और जैनिज्म ने। ठीक है ना? तो देखो, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिड व्हाट राइट हियर। व्हाई आई एम नैरेटिंग ऑल दीज इवेंट्स? बिकॉज दिस इज द थिंग दैट यू कैन नीड इन एस्से। एस्से में रिलेट कर सकते हो, नहीं तो मैं सीधे सिख पावर पे आ जाता। राइट दिस पॉइंट दैट द राइज ऑफ बुद्धिज्म and Jainism, right? Rise of Buddhism and Jainism was a reaction, और डेफिनेशन को ऐसे ब्रेक करके लिखो नोट्स में। राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज अ रिएक्शन, ऐसे एरो मार्क देके पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, ठीक है? नहीं तो याद करने में दिक्कत होगी। राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट, it was a reaction against the the growing, social and religious complexities. It was a reaction against the growing social and religious complexities during during later Vedic period. During later Vedic period. यहाँ पे वैदिक पीरियड दो पार्ट में डिवाइड था। वन वॉज द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द सेकेंड वॉज द लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड वॉज फ्रॉम 1500 to 1000 BC and later Vedic period was from 1000 BC to 600 BC। तो यहीं पे क्या आ गया था? यहाँ पे क्या हो रहा था? तो सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज वेर ग्रोइंग, रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटीज वेर ग्रोइंग, and these new religions did what? They are like a reaction against the social and religious complexities. So what they will do? They will accept the caste rigidities or they will reject the caste rigidities. What they will do? They will reject the caste rigidities. ठीक है? Caste rigidities. जैसे Brahmins, they were the class, okay, who are the teachers. So the son of Brahmin will be the teacher only. If you will impose this principle on the society कि शूद्र स्टडी नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो वेद पुराण नहीं पढ़ सकता, तो this is what? This is complexity, this is evil. So they rejected all the caste rigidities. Okay, they will support। अच्छा देखो, caste rigidities का मतलब क्या हो गया? सपोर्ट करना किस आइडिया को? आइडिया ऑफ इक्वलिटी। अपोजिंग कास्ट रिजिडिटीज मीन्स व्हाट? सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। कितनी आसान बात है, ठीक है? अच्छा बताओ, विल दे सपोर्ट जेंडर इक्वलिटी ऑल्सो? यस, दे विल ऑल्सो सपोर्ट जेंडर इक्वलिटी। अच्छा, कास्ट रिजिडिटीज को अपोज करने का मतलब दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ सोशल इक्वलिटी, इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि अपोजिंग द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम, ठीक है? opposing orthodox rituals and practices, right? Opposing the dominance of priestly class, opposing the dominance of priestly class, okay? Opposing orthodox practices and rituals, opposing orthodox practices and rituals। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, we will discuss this in AMC part। इसका मैसेज क्या है? आर दे टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी? आर दे डिस्कसिंग द इशू ऑफ ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन सोसाइटी, ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन रिलीजन? So is this the first is this the first you can say that this is what the first expression of socio-religious reforms in India? It was seen in ancient India in which age? 600-300 BC period, ठीक है? In the form of rise of Buddhism and Jainism. So this is what you can write here, that this was the very first expression
This was the very first expression of beginning of so religious reforms in India. ये पहला expression था. This was the very first expression of beginning of socio-religious reforms in India. पहला expression है. And here we are emphasizing on the idea of equality. यूरोप में इक्वलिटी का आइडिया कब आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789. लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी. सेंचुरी कौन सी है? 1789, 18th century. So in 18th century AD, during the age of enlightenment period, this idea of equality emerges in Europe. But here we Indians were talking about the idea of equality from the ancient times. During 600-300 BC period, these new religions, Buddhism and Jainism, were focusing on the idea of equality. मेरी बात समझ गया? तो ये पहला expression था. This was the first major expression. This was the very first expression or the first major expression. Now the second expression. This we need to understand. Second expression. Read this. Second expression. Second major expression of social religious reforms. Second major expression of religious reforms. This was seen in the form of Bhakti and Sufi movement. Write this. Bhakti and Sufi. Or all are the topics of culture or not? The second expression was seen in the form of Bhakti and Sufi movement. These all are the topics of culture. अच्छा, भक्ति मूवमेंट सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा? भक्ति मूवमेंट. एंड भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड वेयर? इन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया? आपको पता होगा, इट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया. सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ है? साउथ इंडिया में. ओके, एंड द ईयर इज 8th century AD. दिस इज द ईयर, एंड फ्रॉम साउथ इंडिया दिस विल रीच टू नॉर्थ. भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन साउथ इंडिया है और साउथ से ये कहाँ आएगा? नॉर्थ में. और साउथ इंडिया की सबसे खास बात क्या है कि नॉर्थ में जब जब रिलीजन पे कोई संकट है, कोई क्राइसिस है, उस समय आपके रिलीजियस प्रिंसिपल्स, बिलीव्स को, जैसे लॉकर में आप अपना ज्वेलरी छिपा के रख देते हो कि चोरी ना हो, वैसे साउथ इंडिया ने प्रोटेक्ट किया इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को व्हेनेवर इट वाज इन थ्रेट. व्हाई? बिकॉज ऑल द इन्वेडर्स विल कम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ इज ऑलवेज वल्नरेबल. साउथ तक पहुंचने में उनको टाइम लगेगा. यू विल फाइंड दैट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया were the centers which promoted important cultural forms. बहुत सारे classical forms of dance, music, all they emerged as a temple art in South India. मेरी बात समझ गया ना? South Indian temples were the grand temples. So this is the idea here. Now भक्ति movement from South India से कहाँ आएगा? North India में. And देखो North India में this time period 15th, 16th, 17th century, 15th, 16th, 17th century was the golden period or golden age of bhakti movement in India. Golden period or golden age of bhakti movement in India. 15th, 16th, 17th century क्या है? Golden period और golden age of bhakti movement in India. ठीक है? It was a golden period or golden age of bhakti movement in India. याद रहेगा आपको? डिटेल में पढ़ेंगे एमसी में. एक और पॉइंट यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ that in Hindu society, okay, the attempt to bring reforms here is promoted by bhakti movement. यहाँ पे हिंदू सोसाइटी में जो एवल्स हैं, चाहे वो सोशल एवल्स हों, चाहे वो रिलीजियस एवल्स हों, इन एवल्स को, हिंदू सोसाइटी के एवल्स को कौन दूर करने की कोशिश कर रहा है? भक्ति मूवमेंट. एंड मुस्लिम सोसाइटी में जो एवल्स हैं, या कह सकते हो कि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर कल्चर ऑफ टॉलरेंस को प्रमोट करने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, हालांकि इसके और भी कई मायने हैं जो हम एएमसी में डिस्कस करेंगे. तो देखो, हिंदू सोसाइटी में एक तरह से लिबरल मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट, ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी. और मुस्लिम सोसाइटी में कौन रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है? एंड व्हाट अबाउट गुरु नानक?
Guru Nanak was the founder of Sikhism, and this Sikhism as a new religion was founded when 15th century. देखो बड़ी मजेदार चीज है कि Sikhism as a new religion was founded in which century? 15th century. Okay, and it was founded by Guru Nanak. Guru Nanak was the founder of this, okay, Sikhism, this new religion. और ये किस फेज में फाउंड हुआ है बताओ? गोल्डन फेज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, ये उसी दौर में आया है. इट मीन्स द Sikhism is a byproduct of Bhakti movement. It originated from the Bhakti movement. It was, this religion itself was very progressive in nature. ये socio religious reforms को दिखलाता है और भक्ति movement को दिखलाता है. Got it? So 15th century we see Guru Nanak founded Sikhism. Guru Nanak ने Sikhism को found किया. Okay, and this is what? Read this. This is an expression or byproduct of Bhakti movement. This is an expression और बाई प्रोडक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट. ठीक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. फिर जो थर्ड मेजर एक्सप्रेशन है, थर्ड मेजर एक्सप्रेशन है, वेयर दिस थर्ड मेजर एक्सप्रेशन इज सीन इन 19th century. ओके, इन एनसीईआरटी देयर इज अ चैप्टर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th century. उन्होंने ये मेंशन किया है इन 19th century. इसका मतलब इसके पहले भी हुआ है, नहीं तो 19th century उड़ा दिया होता उन्होंने. मेरी बात समझ गया ना? तो दिस इज द चैप्टर दैट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th century. सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th century. तीसरा एक्सप्रेशन यहाँ है जहां आप राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर और हेनरी विवियन डेरोजियो और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हो. दैट इज द थर्ड मेजर एक्सप्रेशन. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, देयर आर थ्री मेजर एक्सप्रेशंस इन इंडिया. वन इन एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम में क्या है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. द सेकेंड इन, देखो ये फेज को कहा जाता है अर्ली मेडाइवल. इसको क्या कहते हैं? अर्ली मेडाइवल. दिस फेज इज कॉल्ड मेडाइवल. So the second expression is seen during the early medieval and medieval phase. दूसरा expression early medieval और medieval phase में है. Is it clear? In the form of Bhakti and Sufi movement. And in this phase, the rise of Sikhism as a new religion is seen in which century? 15th century. Therefore, it is a byproduct of Bhakti movement. It's a major expression of Bhakti movement. And the third major expression was seen when? Okay, in 19th century in the form of religious reform movement. ठीक है ना? तो ये तीन major expressions है. These are the three major expressions. Now here, what is important point here? In 15th century India, कौन कौन से challenges थे? पहले तो गुरु नानक के बारे में जानो कि he lived in the company of many bhakti saints. He visited Hindu pilgrimage sites also. गुरु नानक ने सारे हिंदू pilgrimage sites visit किए. उन्होंने उस समय के जितने भी पॉपुलर भक्ति सेंट्स थे, ठीक है, सबके साथ चाय पे चर्चा की. राइट. ही ऑल्सो विजिटेड द मुस्लिम पिलग्रिमेज साइट्स. मक्का मदीना भी चले गए. ही ऑल्सो डिड चाय पे चर्चा विथ ऑल द सूफी सेंट्स. उनके साथ भी बातचीत की. देन फाइनली ही रीच्ड एट अ कंक्लूजन. और उनका कंक्लूजन क्या था? दैट देयर आर गुड एलिमेंट्स इन हिंदू रिलीजन ऑल्सो, देयर आर गुड एलिमेंट्स इन इस्लाम रिलीजन ऑल्सो. तो कॉम्बो पैक लेके आ गए. ही कंबाइंड द गुड एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दीज टू रिलीजन्स, एंड in this way a new religion came into existence, and that was Sikhism. So Sikhism is what? Sikhism is basically, here we see the inclusion of all the good elements from the Hindu religion, from the Muslim religion. सबको एक साथ लाके मिक्स कर दिया. Okay, so Sikhism में क्या है? Read this here. Right, the good elements from both these religions, good elements from both these religions, that is Hindu and Islam, were combined together. Were combined together. Good elements from both these religions were combined together in the form of a new religion, and that is what? Sikh religion. अच्छा, गुड एलिमेंट्स हमेशा क्या करेंगे? इविल एलिमेंट्स को अपोज करेंगे. अब 15th सेंचुरी में एविल एलिमेंट्स क्या हो सकता है बताओ? 15th सेंचुरी में इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो विजिबल थी? रिजिड कास्ट सिस्टम था, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस था, ऑर्थोडॉक्स एंड डोमिनेंस ऑफ प्रिस्टली क्लास था. यस.
कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैरिजेस था, यस। इंटरडाइनिंग वाज इट पॉसिबल, द आंसर इज नो। ठीक है। अपर वर्णा लोअर वर्णा कहाँ साथ बैठ के वो भोजन करते थे, नहीं होता था। इंटरडाइनिंग वाज नॉट पॉसिबल। वे ऑल्सो यू विल सी दैट सम प्लेसेस देयर आर सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। इंटरवर्णा वाज नॉट पॉसिबल। ओके। so all these are the problems of that time. Now Sikhism will do what? It will address all these problems. Sikhism में क्या होगा? कास्ट रिजिडिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा कि इक्वलिटी को? इक्वलिटी। गॉट इट? ओके। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस विल बी सपोर्टेड और विल बी अपोज्ड? विल बी अपोज्ड। ठीक है ना? simple form of marriages will be promoted. Okay. The element of brotherhood will be promoted. Dominance of priestly class will be discouraged. Simple form of religion, simple form of marriages will be promoted. Interdining will be promoted. Untouchability will be opposed. कितने प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन दोनों के गुड एलिमेंट्स को मिलाया और एक नया रिलीजन बनाया, that is Sikhism. So this is one of the most progressive religion. Now there is the tradition of gurus in Sikh religion. Sikh religion में gurus का concept है. So who is the founder? Guru Nanak was the founder. Guru Nanak was the founder and he was the Sikh Guru also. First Sikh Guru also. First Sikh Guru also. इसके बाद एक गुरुशिप की ट्रेडिशन चलेगी जिसमें टोटल गुरुज विल बी 10. कुल गुरुओं की संख्या कितनी होगी? 10 होगी. द नंबर ऑफ ऑल गुरुज विल बी 10. ठीक है। ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो. फर्स्ट ग्रुप इज NAARA, सेकेंड ग्रुप इज 3H. अभी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा. द फोर्थ ग्रुप, ओके, यू कैन राइट TG. ओके, नारा 3H TG. NAARA, मतलब यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स. मैं भी भूल जाता हूं तो मुझे भी ट्रिक से याद रखना पड़ता है, राइट? NAARA. N stands for what? Guru Nanak. Okay. देखो पहला क्या है? N stands for Guru Nanak. Then write this A. A stands for Angad. Guru Angad. A stands for Guru Angad. ठीक है. Then again A stands for Amardas. So this is what? Guru Amardas. Guru Nanak, Guru Angad, Guru Amardas. R stands for रामदास. तो गुरु रामदास. 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. ओके. ओके. एंड देन अगेन A स्टैंड्स फॉर अर्जन देव. A स्टैंड्स फॉर अर्जन देव. अर्जन देव. तो देखो N नानक AARA 1 2 3 4 5. NAARA. तो ये तो 5 गुरुज हो गए. N फॉर नानक, A फॉर अंगद, A फॉर अमरदास, R फॉर रामदास, राइट? अगेन A फॉर अर्जन देव. देन H that is हरगोविंद. राइट दिस. हरगोविंद, हरगोविंद, हर राय एंड हरकिशन. हरगोविंद, हर राय एंड हरकिशन. हरगोविंद, हर राय एंड हरकिशन. और TG इज द मोस्ट फेमस. T फॉर तेग बहादुर एंड G फॉर गुरु गोविंद सिंह. ठीक है ना? सो दैट इज द मोस्ट फेमस. नाउ द लास्ट ग्रुप इज TG. इट मीन्स T स्टैंड्स फॉर तेज बहादुर, गुरु तेग बहादुर, एंड G स्टैंड्स फॉर गुरु गोविंद सिंह. गुरु गोविंद सिंह. अब कैलकुलेट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is what? 10. So this is 10 gurus. ठीक है. ये नाम आपको याद कर लेना है. In next class I will discuss most important point here. And after 10th guru, this, okay, system of guruship will be changed a little bit. यहाँ एक change होगा. Basically it was not ended. Their holy book is what? Guru Granth Sahib. तो अब गुरु का जो वो है वो एटर्नल हो जाएगा. हमेशा के लिए गुरु कौन हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब. दैट्स व्हाई वी यूज दिस वर्ड गुरु फॉर ग्रंथ साहिब. तो इन प्रैक्टिकल सेंस द प्रैक्टिस ऑफ गुरुशिप केम टू एन एंड हियर. और इसके बाद ये गुरु का दर्जा किसको मिल जाएगा? सो देयर फेमस बुक दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब.
ओके, तो इसके बाद गुरुशिप इसमें आ जाएगी, गुरुशिप। तो द दिस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग few persons and individuals as the gurus will come to an end after this 10th guru, and then Guru Granth Sahib will be the successor. Okay, this is the idea. ये बात आप समझ गए? और सिख किस रिलीजन को, सॉरी, किस रीजन पे रूल करेंगे? तो दैट इज पंजाब रीजन। और पंजाब क्या है? इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी मच important. Okay, the Sikh religion will grow and flourish near the territories of Punjab, and this is one of the most important reason. It is important from the strategic point of view. So in next class we will discuss important points about these Sikh gurus, right? Conflict with Mughal Emperor Aurangzeb, then how the system of missiles emerged, how Ranjit Singh emerged as one of the most powerful ruler. Then we'll discuss Treaty of Amritsar, we will discuss Tripartite Treaty, we will discuss the Afghan context and how Anglo-Afghan wars were fought. तो ये क्लास आपका कंप्लीट पैकेज है, ये मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। अगर मैं क्लास में नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा है, उसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको अलग से सिर्फ क्या प्रैक्टिस करना हो, पीवाईक्यू। और जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका आंसर आपको पहले से पता है, बिकॉज क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पे मैं 2-3 बार रिपीट करता हूँ ताकि वो फैक्ट आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। मेरी बात समझ गए ना? तो साथ साथ आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी चल रहा है, बट आपको नहीं पता चल रहा है। बट व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज विल नो दिस। ठीक है, थोड़ा समय मुझे ऐसे देते रहेंगे, ठीक है? मेरी बात समझ गया? ठीक है, इट्स अ टू वे प्रोसेस। आई एम रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर्स सो दैट आई कैन डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट्स, और उनको फिर बुक की ज़रूरत ना फील हो, बिकॉज देर इज़ अ जनरल परसेप्शन अमॉन्ग स्टूडेंट्स दैट हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे फैक्ट्स है। ओके, तो वंस द स्टूडेंट्स विल एंजॉय लर्निंग हिस्ट्री, ओके, जब उनको उनका ये मिथ ब्रेक होगा, गॉट इट, तो वो किधर शिफ्ट करेंगे? हिस्ट्री ऑप्शनल की तरफ। और मैं हिस्ट्री ऑप्शनल से टॉपर्स दूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो मेरा पर्पस पहले इस मिथ को ब्रेक करना है, और ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद तो बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड ऑल दिस, राइट? तो ये सारी चीज़ें इसके बाद आएंगी। और सेकेंड सेशन वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा, कल सैटरडे है, टुमारो इज सैटरडे। तो देखो, लास्ट डे द क्लास वॉज ऑफ, बट टुमारो आई विल रिकॉर्ड अ स्पेशल सेशन। ठीक है, इसी टाइम पे हम वो रिकॉर्ड करेंगे, 10:30 to 12:30, हो सकता है हाफ आवर ज़्यादा भी लग जाए। एंड आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, देयर रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत डिटेल में बात करूंगा, एक एक बेसिक चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। गॉट इट? तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इट, ऑन द सेम टाइम आई विल शेयर द लिंक विथ यू। ठीक है, लिंक इसी नाम से जाएगी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास, बट वहाँ पे हम टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द एक्सक्लूसिव लेक्चर। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक की प्रिंसली स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था और नेशनल मूवमेंट तक जाएंगे। ऑब्वियस है क्लास लेक्चर्स में वो उतना डिटेल में शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है, बट ये लेक्चर आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को क्या करेगी, रिफाइन कर देगी। तो अगर आप टाइम मैनेज कर पाना, must join the class, and when you are joining that class, make a separate copy with you, separate notes for that exclusive lecture, because in that lecture I will include many questions of prelims। प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन ले आऊंगा, जैसे बटलर कमेटी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। मेरी बात समझ गए? ये 1858 के बाद क्या चेंजेस हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या प्रोविजन था। तो वो बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक है जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। हियर वी आर रीडिंग लाइक फाउंडेशन बेसिक्स, एक एक वहाँ पे क्या है, थोड़ा एडवांस होगा, वी विल इनकॉर्पोरेट ऑल द थीम्स, ठीक है ना? तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे ज्वाइन इट, आई विल सेंड द लिंक विल बी द सेम, सेम लिंक होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास लिख के आएगी, बट देयर वी विल डिस्कस दैट वेरी टॉपिक, ठीक है ना, टुमारो। ओके, चलिए समझ में आया, राइट? मिलते हैं अगली क्लास में। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम, वेलकम।